Okay. So before going to start today's session, can you just confirm me? लास्ट सेशन में हमने कुछ लैब भी दिया था आप लोगों को या फिर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ कहा था? किया था किसने से? रजत आपने किया था? मंजित, हैव यू डन एनी क्लास एनी प्रैक्टिकल? हाँ सर, वो क्या बोलते हैं, एससीटीपी वाला जो ट्रैफिक था ना, वो ट्रैक करके देखा था बाहर शाफ्ट में। ओके, हुआ ट्रैक? पता चला क्या कह रहा हाँ था सर। उस सेशन में? बेसिकली आउटपुट क्या था? हाँ सर। ओके, so can you just elaborate what is HTTP? एसटीटीपी में क्या होता है ना सर, हाँ, हमारा जो टीसीपी हैंडशेक होता है वो तो प्रॉपरली होता है, लेकिन जो हमारा डाटा है वो एज अ प्लेन टेक्स्ट ही जाता है। राइट. तो वो क्या होता है, अगर बीच में कोई अटैकर होगा तो उसको हमारा डेटा क्लीन दिखाई देता है कि क्या आईडी या क्या पासवर्ड जो है ट्रेवल कर रहा है। Okay, and what is the definition of HTTP? आई एसटीटीपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Yeah, I am asking for definition. Let's say interviewer is asking you, Manjit, can you just explain HTTP? How can you explain? I'm asking that particular question. ओके। HTTP is a protocol which help us to reach the web server Mm-hmm. and help us to reach the web server uh, through port number 8080. Mm-hmm. And in this protocol, the data transfer over the internet in plain text format, which is Okay. not secure. Okay, good. Rajat, can you explain? Rajat, are you there? Bismay, can you explain what is HTTP? Okay. So HTTP as one this HTTP stand for Hypertext Transfer Protocol. It is working on port number 80. Okay, that is good. But whenever interviewer is asking you what is HTTP, you are not saying this is the protocol which is help me to reach the web server. It is not the protocol which is help you and me to reach the server. No, this protocol is not helping me to reach the server. The behind this protocol there is TCP, there is UTP. These are this protocol who are creating a session in between server and client so that I can reach my server. And there is a DNS server, there is and multiple different server who are helping me to reach that particular server. But what is HTTP? HTTP stand for Hypertext Transfer Protocol. It is a protocol which is helping server to serve the web pages. As I earlier saw you, HTTP stand for Hypertext Transfer Protocol. That means there is two word. One is called hypertext. Okay, let's say I am writing Manjit. Okay, this is nothing but this is your plain text. I am writing like that. Question mark one, two, three. This is nothing but this is ciphertext. So like the same. Okay, let me just share my screen, guys. I think my screen is not visible. Okay. Okay, like if I'm just writing, let me just make it clear. Let's say I'm writing Manjit. Okay, this is nothing but this is your plain text format. Okay, I am writing question mark at the rate one, two, three. This is nothing but your cipher text. Okay, so like the same, there is another text which is nothing but your hypertext. If you just go and check, let me just show you. This is the hypertext. Let's say I am searching network.co.in. This is our website. If you just go and go to inspect section, there is a language. This language, I am talking about this language. This is nothing but hypertext. If you just go and check the page source, view page source, this is the hypertext. Okay, these all text are nothing but your hypertext. So to serve this kind of text, there is a protocol. This is nothing but your hypertext transfer protocol. So hypertext transfer protocol is a dedicated protocol which is serving web pages. ओके, अगर इसे अगर नेचुरल लैंग्वेज में या फिर हमारी लेमन लैंग्वेज में मैं आपको थोड़ी बहुत बताऊं, जैसे ये मैंने मंजित लिखा, दिस इज प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। सेम को अगर मैंने इनक्रिप्ट करके लिख दिया, दिस इज नथिंग बट योर हाइपर टेक्स्ट। तो लाइक द सेम हमारे पास एक टेक्स्ट होती है, दिस इज नथिंग बट योर हाइपर टेक्स्ट, जो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ HTML आप कह सकते हो,
CSS आप कह सकते हो, JS आप कह सकते हो, और यू कैन से PHP आप कह सकते हो, पाइथन आप कह सकते हो, मल्टीपल चीजें कह सकते हो, बट देयर इज ए HTML हाइपर टेक्स्ट। यहाँ पे भी देखो वर्डिंग आ रही है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP में भी एक वर्डिंग आ रही है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट इज नथिंग बट, हाइपर टेक्स्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, जिस क्लिक, लेट्स से एक टेक्स्ट है आपके पास, लेट्स से मंजित, इस मंजित को मैं क्लिक करूंगा कोई दूसरी एक पेज में मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा, दिस, इस टाइप के टेक्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट। ओके, जिसके अंदर क्या रहती है, बैकएंड में कहीं ना कहीं यूआरएल सेट होके रहता है। सो लाइक द सेम, हमारी सर्वर के अंदर कोई ना कोई वेबसाइट को हम होस्ट करते हैं। ओके, और सर्वर तक पहुंचने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल है, जैसे मैंने आपको कहा डीएनएस है, डीएनएस से मैं रिजोल्व करूंगा और आईपी को रीच कर जाऊंगा। एंड मेरे पास क्या है, टीसीपी है कनेक्शन बनाने के लिए, यूडीपी है कनेक्शन बनाने के लिए। वी बाय द हेल्प ऑफ द एचटीटीपी प्रोटोकॉल वी आर नॉट रिसाइडिंग टू द टू द वेब सर्वर। जैसे मंजित ने कहा एचटीटीपी मुझे हेल्प करता है वेब सर्वर तक पहुंचने के लिए, इट इज टोटली रॉन्ग। एचटीटीपी प्रोटोकॉल कभी भी मुझे हेल्प नहीं करता वेब सर्वर तक पहुंचने के लिए, ये काम ये नहीं करता। इसका सिंपल सा काम क्या रहती है, जो भी वेब फाइल या फिर जो भी वेबसाइट की फाइल आपने होस्ट कर रखा है अपनी सर्वर के ऊपर, ओके, उस फाइल को रन करना और क्लाइंट को दिखाना। लेट्स से जैसे हमारी वेबसाइट में हमने दिखाया, यहाँ पे दिखाएगा, लेट्स से हमारी वेबसाइट में हमने सिंपली आपको क्या दिखाया, यहाँ पे एनरोलमेंट दिखाएगा, यहाँ पे होम की बटन दिखाएगा, यहाँ पे कोर्स की बटन दिखाएगा, यहाँ पे हमारी ब्रांड की लोगो आएगी, एंड देयर इज मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ आवर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे कितने बंदों ने हमसे बेसिकली एजुकेटेड हो चुके हैं, यहाँ पे ज्वाइन नेटवर्क, ये जो सारे चीजें हमने एक फाइल बनाया, उस फाइल के अंदर फॉर्मेटिंग करके रख दिया टेक्स्ट फॉर्मेट में। अभी ये टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल कहाँ पड़ा हुआ है, मेरी सर्वर में पड़ा हुआ है। ओके, और सर्वर को कैसे पता, बाय डिफॉल्ट सर्वर को तो पता ही नहीं है कैसे दिखानी है, ये बैकएंड बैकग्राउंड में इमेज कौन सी लगानी है, इस नेटवर्क का डॉट इन की फॉन्ट साइज क्या रखनी है, इसकी कॉलर क्या रखनी है, यहाँ पे एनरोल के ऊपर जैसे कोई क्लिक करेगा कौन सी पेज में रीडायरेक्ट होगा, बाय डिफॉल्ट सर्वर को कुछ नहीं पता। जैसे यहाँ पे हमारी चार्ट बॉट है, ये सब बाय डिफॉल्ट सर्वर को नहीं पता है। ओके, और सर्वर को पता लगाने के लिए कौन हेल्प करता है, एचटीटीपी। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हो दूसरे एक पेज में रीडायरेक्ट हो जाते हो। ये जो पूरी की पूरी वेब पेज है वो आपको दिखा कौन रहा है, HTTP दिखा रहा है, और यू कैन से HTTPS दिखा रहा है। अगर सिक्योर में आप देख रहे हो दिस इज नथिंग बट HTTPS, और अगर नॉन सिक्योर में आप देख रहे हो हमारी वेबसाइट, दिस इज HTTP। ओके, नॉर्मली अभी आप HTTP को समझ लो और HTTPS भी समझ जाओगे। ये जो पूरी की पूरी वेबसाइट है, इसे दिखाने के काम कौन करता है, मेरी HTTP करता है। गॉट इट मंजित? यस सर। ओके, कैन यू जस्ट recap what is HTTP? बताओ तो पूरा। HTTP is a web HTTP is basically provided as like serve the web pages from Right. the web server. Yes. That's the Yes sir. word. That's the keyword. Serve the web Hmm. page. Okay. That's the Hmm. that's the keyword which you are saying to the interviewer. Okay. Okay So sir. last session में कोई डाउट है, रजत, विस्मय, मंजीत? No sir. Okay. Rajat, can you just confirm? विस्मय, are you there? Yes, Okay. yes. Yes, yes, बताओ, कोई डाउट है आपका? No, nothing. What is HTTPS? Can you just told me, Vismay, what is the difference between HTTP and HTTPS? If You are not audible, Vismay. hello. Yes, yes. Now you are audible. I think there is some network issue. First, just disconnect and join again. Okay. So, in our today's session, also we are going to discuss a very important topic और very important protocol. देखो नेटवर्क में जैसे मैं कहता हूँ ना, नेटवर्किंग फील्ड में या फिर आप जो आईटी फील्ड में हो, ईच एंड एवरी प्रोटोकॉल आर इम्पोर्टेंट। ओके, ईच एंड एवरीथिंग। आप जैसे जैसे आगे आगे पढ़ते जाओगे या फिर जैसे जैसे आप सर्टिफाइड होते जाओगे धीरे धीरे, लेट्स से आप L2 पोजीशन पे हो, L2 से L3 जा रहे हो, L3 से फिर एडमिन बन रहे हो। सो ईच एंड एवरी प्रोटोकॉल, इट्स नॉट लाइक मेरे पास एनटीपी मैं यूज नहीं कर रहा, सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू एनटीपी इज नॉट इम्पोर्टेंट।
ओके, आपको कॉन्फ़िगर करना नहीं आता, आपकी प्रोडक्शन या फिर एनवायरनमेंट नेटवर्क में आप एनटीपी सर्वर को चला ही नहीं रहे हो, ओके, आप नेटवर्क को कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हो, सो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि एनटीपी सर्वर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ईच एंड एवरी प्रोटोकॉल आर इम्पोर्टेंट। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वही सेम प्रोटोकॉल कोई दूसरी कंपनी के लिए बहुत ही क्रिटिकल प्रोटोकॉल हो सकता है। ओके, सो यू मस्ट नो ईच एंड एवरी प्रोटोकॉल। आपको ऐसा नहीं कि एनटीपी तो आजकल यूज ही नहीं होता, मेरी कंपनी में तो एनटीपी मैंने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया तो मैं एनटीपी क्यों सीखूं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको हर एक प्रोटोकॉल के बारे में मैं भी मस्ट, इट्स नॉट लाइक आपको पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। आपको पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन आए या ना आए, कम से कम बेसिक तो आना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं है। ओके, सो लाइक द सेम हमने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स कवर कर चुके हैं अभी तक, जैसे एनटीपी, एस एन एनटीपी, देन पॉप थ्री हालांकि हमने कवर नहीं किया, बट पॉप थ्री हमें पता है मेलिंग सर्वर है, विच इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ओके, सो लाइक द सेम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू सर्वर पॉइंट ऑफ व्यू और नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज नथिंग बट योर टेलनेट एंड एसएसएच। एंड बिलीव मी गाइस, 100% जो नेटवर्क इंजीनियर है ना, उनमें से 99% को एसएसएच कॉन्फ़िगर करना सही से नहीं आता। ओके, एंड वो बेसिकली हम देखेंगे एसएसएच में बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसे कैसे टैकल करेंगे हम लोग देखेंगे। ओके, सो बिफोर दैट आपको पता होगा, लेट्स से मंजित इज मंजित की जो ऑफिस है, लेट्स से मंजित की ऑफिस दिल्ली में है। ओके, मंजित की ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में है। और मंजित की जो ऑफिस है वो लेट्स से एक एचओ है, हेड ऑफिस है। ओके, मंजित की जो हेड ऑफिस है इसके अंडर लेट्स से चार छोटे छोटे कंपनी आते हैं, या फिर ऐसे आप कह सकते हो मंजित लेट्स से देहरादून की कोई एक डेटा सेंटर में है। लेट्स से देहरादून अपना यूके में है, यूके में मंजित एक डेटा सेंटर में है, हुई चीज लेट्स से डीसी सर्विस में मंजित बैठा हुआ है। ओके, मंजित इज वर्किंग एज ए प्रोफेशनल एट डेटा सेंटर एट यूके। ओके, और मंजित के अंदर चार छोटे छोटे कंपनियां आते हैं, लेट्स से एक कंपनी दिल्ली की है, दूसरी कंपनी नोएडा की है, और तीसरी कंपनी लेट्स से राजस्थान की है। ओके, अभी मंजित क्या कर रहा है? एक साइट को मैनेज कर रहा है। इस टाइप के काम को हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं? साइट मैनेजमेंट काम। और ये मंजित कहाँ पे बैठा हुआ है? रिमोट लोकेशन पे बैठा हुआ है। मंजित दिल्ली में नहीं बैठा हुआ, मंजित नोएडा में नहीं बैठा हुआ, मंजित राजस्थान में नहीं बैठा, मंजित कहाँ पे बैठा हुआ है? डेटा सेंटर में बैठा हुआ, व्हिच इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। ओके, सो मंजित की फिजिकल लोकेशन कहाँ पे है? उत्तराखंड में। लेकिन कोई भी इशू दिल्ली में आता है नेटवर्क का या फिर सर्वर का, या फिर नोएडा में आ रहा है या फिर राजस्थान में आ रहा है, मंजित क्या करता है? उसे रिमोटली सॉल्व कर देता है। इसको हमें क्या कहते हैं? रिमोट सपोर्ट। आपने एक टर्म बहुत तो सुना होगा, विच इज नथिंग बट योर रिमोट सपोर्ट। ओके, और विंडोज में भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, और हमारी नॉर्मल सिस्टम को भी हम रिमोट पे देते हैं। रिमोट सपोर्ट इज नथिंग लाइक आप फिजिकली नहीं हो प्रेजेंट उस लोकेशन में वो ट्रबल शूटिंग करने के लिए, बट आप रिमोटली कोई दूसरी लोकेशन पे बैठे हुए हो, लेकिन कोई दूसरी लोकेशन के काम आप कर पा रहे हो। लाइक आप बैठे हुए हो उत्तराखंड में, लेकिन नेटवर्क की कोई इशू आ रहा है दिल्ली में। सो दिल्ली में जितने भी नेटवर्क स्विचेस, जितने भी नेटवर्क राउटर है, आपने क्या किया? रिमोटली एक्सेस कर रखा है। ओके, रिमोटली एक्सेस कर रहे हो और सारे डिवाइसेस को आप मॉनिटर भी कर पा रहे हो, कॉन्फ़िगर भी कर पा रहे हो रियल टाइम के। अगर आपको एक सिनेरियो बताऊं, लेट्स से आईबीएम हमारे पास एक कंपनी है। आईबीएम इज नथिंग बट इट इज अ कंपनी। और आईबीएम क्या है? आईबीएम के जो हेडक्वार्टर है इंडिया की अगर बात करो, आईबीएम की हेडक्वार्टर है, इट इज इन बेंगलोर। जस्ट फॉर एग्जांपल, आईबीएम की बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। और आईबीएम की ये जो हेड ऑफिस है, दिस इज नथिंग बट एचओ। आईबीएम की एचओ के अंदर चार छोटे छोटे आरओ या जेडओ आ सकते हैं, ऐसे आप कह सकते हो। ओके, सो आईबीएम ऑफिस 1 ले सकते हो आप यहाँ पे, विच इज लोकेटेड एट दिल्ली। ओके, और आईबीएम ऑफिस 2 और एक ऑफिस है, विच इज नथिंग बट योर नोएडा। ओके, और आईबीएम के ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिस है ओवर द ग्लोब। ओके, ये लेट से आप कह सकते हो कैलिफोर्निया में है। ओके, सो ओवर द ग्लोब आईबीएम की बहुत सारे कंपनीज हैं। ओके, सो आईबीएम की जितने भी एक्सपर्टीज टीम हो गई, या फिर आप कह सकते हो सिस्को टीम, सिस्को की एक टीम सुना होगा आपने, नॉक टीम। ओके, ये जो टीम बैठते हैं कहाँ बैठते हैं? रिमोट पे बैठते हैं, मतलब आपकी फिजिकल लोकेशन में नहीं बैठते। कभी कोई इशू आता है वो रिमोटली सॉल्व करते हैं, फिजिकल वो लोग आते नहीं है आपकी लोकेशन में। वो क्या करते हैं? फिजिकली ना आते हुए भी इशू को सॉल्व कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस टेलनेट और एसएसएच। सो दैट्स व्हाई टेलनेट और एसएसएच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और लेट से आप कोई रिमोट सर्विस किसी को नहीं दे रहे, लेट से यू आर नॉट सर्विसिंग एनी काइंड ऑफ रिमोट क्लाइंट, आप आपके रिमोट क्लाइंट को भी कोई सर्विस नहीं दे रहे। सो क्या इसका मतलब मैं टेलनेट और एसएसएच नहीं पढ़ूं? नो, आपको टेलनेट और एसएसएच अच्छे से आना चाहिए। व्हाई?
बिकॉज लेट से आपकी कंपनी के अंदर 20 स्विचेस है, ओके, और आपको स्विच में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, या फिर आपकी लेट से आपकी कंपनी के अंदर तीन तीन या चार राउटर लगे हुए हैं, बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, आपको उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है। सो ट्रेडिशनल मेथड क्या है? ट्रेडिशनल मेथड इज नथिंग बट योर कंसोल केबल। आप जाओ डिवाइस में अपनी कंसोल केबल लगाओ और कॉन्फ़िगरेशन करो, ओके। सो क्या 20 स्विच कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं 20 बार जाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट स्विच के पास और जाके फिजिकल केबल लगाऊंगा विच इज कंसोल केबल और कॉन्फ़िगरेशन करूंगा? इट इज नॉट गुड वे, और ये आप कह सकते हो इट इज नॉट एफिशिएंट वे। सो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक ही लोकेशन में अपनी लैपटॉप ऑन करके बैठ जाऊंगा, ओके, और अपनी कंपनी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाऊंगा, और जितने भी मेरी स्विचेस है, राउटर है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है, उन्हें क्या करूंगा, मैं रिमोटली एक्सेस कर लूंगा, ओके। चाहे वो मेरी नेटवर्क में है या फिर कोई दूसरी लोकेशन में है या फिर मेरी दूसरी कोई ऑफिस में है, मैं उसे रिमोटली एक्सेस कर पाऊंगा। अब रिमोटली एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स आते हैं, वन इज टेलनेट, another is SSH. Out of that, there is not any other method. ओके, प्रोटोकॉल की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, टेलनेट और एसएसएच ही होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं सोलर विंड में भी तो एक्सेस कर सकता हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन देयर इज अनदर वे, वो अलग टेक्निक्स होते हैं, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी की जो हमारी एजेंडा है, दिस इज टेलनेट और एसएसएच, ओके। सो टेलनेट और एसएसएच जो मैंने अभी कहा रिमोट सर्विस, इसकी अगर एक बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाऊं, आपने कभी ना कभी विंडोज सिस्टम को या फिर आपकी मैकबुक को या फिर आपके पास जो लैपटॉप मोबाइल जो भी है, आपने कभी ना कभी रिमोट सर्विस किसी को दिया होगा, लाइक टीम व्यूअर हो गया, आपका, ओके, या फिर विंडोज की खुद का MSTSC हो गया, MSRA हो गया, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोटोकॉल, ओके, लाइक देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशन। अगर लेट मी जस्ट चेक एंड शो यू, देयर आर मल्टीपल चेक, okay, there is a application which is nothing but AnyDex, which is a famous application in IT industry. AnyDex एक application है, there are lots of application which are actually support remote services, okay, और सबसे जो ज्यादा फेमस चलता है, आपने कभी ना कभी ये वाली प्रॉम्प्ट भी देखा होगा, which is nothing but remote desktop connection, which is Microsoft MSTSC जिसे हम कहते हैं। आपने इसके ऊपर कभी ना कभी काम किया होगा, आरओ एडमिन के ऊपर कभी ना कभी काम किया होगा, देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन, और ये वाली लोगो तो हम सबके बीच फेमस है ही, विच इज नथिंग बट योर एनीडेक्स, ओके। सो इसके मदद से बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को किसी दूसरी लोकेशन तक पहुंचा पाते हैं वाया द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क के मदद से हम क्या कर पाते हैं, एक लोकेशन में होते हुए भी हम दूसरी लोकेशन की कोई सिस्टम, कोई नेटवर्किंग डिवाइसेस को एक्सेस कर पाते हैं वाया द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट। और ये सारे पूरी प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एक्टिव डिवाइस चाहिए, मे भी लैपटॉप हो सकता है, मे भी आपकी मोबाइल हो सकती है, मे भी आपकी डेस्कटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, एक कंप्यूटर और एक मोबाइल या फिर एक लैपटॉप आपको चाहिए, और एक एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, ओके। एक एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन चाहिए। अगर अभी मैं अपनी सिस्टम में लेट से एनीडेस्क को इंस्टॉल कर दूं, लेट से आई एम इंस्टॉलिंग एनीडेस्क इन माय सिस्टम, ओके, और मैं दूसरी एंड पे मंजित को बोल दूं कि मंजित आप अपनी मोबाइल सिस्टम में क्या करो, एनीडेस्क को इंस्टॉल कर दो। सो अगर मंजित भी एनीडेस्क इंस्टॉल कर रहा है, देन मंजित मेरा स्क्रीन को क्या कर सकता है, यहाँ पे रिमोटली एक्सेस कर सकता है, मेरी सिस्टम के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता है, वाइस वर्सा मैं भी मंजित की सिस्टम में एक्सेस कर पाऊंगा, ओके। सो दीज these all things are covered, or these all things are happening by the help of this telnet और SSH। आपको लग रहा है कि मैं तो GUI से एक्सेस कर रहा हूँ, इसके पीछे अलग कोई टेक्नोलॉजी, नो, बिहाइंड द स्टोरी हमारे पास टेलनेट और SSH है। ये एनीडेक्स हो गया, फिर एरो एडमिन हो गया, फिर MSTSC हो गया, बैकएंड में टेलनेट और SSH के ऊपर ही डिपेंड है, विदाउट दैट यू कैन डू दिस, ओके। गॉट इट? रिमोट सर्विसेज किसे कहते हैं, पता चल गया आपको? यस सर। ओके, अभी थोड़ा सा देखते हैं, लेट मी जस्ट शो यू द PPTs guys, let me just view in present mode, okay। So normally in this session we are going to discuss remote access method for network communication and security। देखो नेटवर्क की जब भी बारी आएगी, वहां पे हमें दो चीजें माइंड पे लेके चलना चाहिए, वन इज सिक्योरिटी, एक तो है सिक्योरिटी, अनदर इज पोर्ट, ओके। पोर्ट भी इंपॉर्टेंट है नेटवर्क में, लेट से आपने पोर्ट नंबर टेलनेट को आपने एनेबल किया, ओके, लेकिन आपकी फायरवॉल में टेलनेट की जो पोर्ट है, पोर्ट को आपने ब्लॉक कर रखा है, इट इज नॉट वर्किंग। और सिक्योरिटी हमें तो हर एक नेटवर्क में चाहिए, जस्ट बिकॉज टूडेज इंडस्ट्री रिक्वायर्ड सिक्योरिटी। अगर आपकी नेटवर्क आप एक्सेस कर रहे हो, लेट से यू आर एक्सेसिंग, लेट मी जस्ट शो यू, लेट से आप यहाँ पे बैठे हुए हो, यू आर रिसाइडिंग इन नोएडा, आप नोएडा में बैठे हुए हो, एंड आप कुछ
कुछ एक कोई एक दूसरी कंपनी का क्या कर रहे हो, एक राउटर को एक्सेस कर रहे हो, कोई इशू आया हुआ है, बेसिकली आप उसे सॉल्व कर रहे हो। ओके, या फिर मैं यहाँ पे बैठा हुआ, लेट्स आई एम रिसाइडिंग एट दिल्ली, मैं अभी कहाँ पे बैठा हुआ, लेट्स से ये मैं हूँ। ओके, मैं यहाँ बैठा हुआ कहाँ पे, दिल्ली में। ओके, एंड मंजित कहाँ बैठा हुआ है, लेट्स से मंजित की भी एक लोगो बना देते हैं। लेट्स से दिस इज मंजित। ओके, मंजित अभी कहाँ बैठा हुआ है, मंजित रिसाइडिंग एट यूके विच इज नथिंग बट उत्तराखंड। ओके, मंजित उत्तराखंड में बैठा हुआ है और आई एम रिसाइडिंग एट दिल्ली। हम दोनों की डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल लोकेशन है। ओके, लेकिन लेट्स से मंजित की ब्रॉडबैंड में, या फिर मंजित की राउटर में, या फिर मंजित की कोई एक नेटवर्किंग डिवाइस में कोई इशू आ गया, तो मंजित अभी मुझे क्या करेगा, रिमोट पे अपनी फायरवॉल या फिर राउटर को या फिर स्विचेस को देगा। तो सिंपली मैं यहाँ से क्या करूंगा, रिमोट सर्विसेज को ऑन करूंगा और मंजित की जो नेटवर्क डिवाइस है उसे एक्सेस करूंगा। ओके, सो एक्सेस तो कर लूंगा, बाय डिफॉल्ट मैं टेलनेट से भी एक्सेस कर लेता था, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज नथिंग बट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट क्यों चाहिए, लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी डेटा भेज रहा हूँ, लेट्स से कोई कमांड मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ मंजित की सिस्टम पे, या फिर मंजित मुझे यहाँ से कोई फाइल भेज रहा है मेरी सिस्टम में। सो अगर बीच में अगेन कोई हैकर बैठा हुआ है, फिर कोई अटैकर बैठा हुआ है, सो वो यहाँ पे क्या कर सकता है, मेरी जो डेटा है, मेरी जो कमांड्स है, उसे मैनिपुलेट कर सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इंटरफेस को अप करने के लिए मैं कमांड दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो अटैकर बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरफेस को डाउन करने के लिए कमांड, इसे मैनिपुलेट कर रहा है मेरी कमांड को। सो इट इज नॉट द राइट वे टू एक्सेस एनी रिमोट प्रोटोकॉल। कोई भी रिमोट डिवाइसेस या फिर रिमोट प्रोटोकॉल को आप एक्सेस कर रहे हो, देयर मस्ट बी सिक्योरिटी, वहां पे सिक्योरिटी होना चाहिए, और डाटा जो है आपकी वो इनक्रिप्ट होकर आगे जाना चाहिए। ओके, अपकमिंग सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा अभी टेलनेट की ट्रैफिक और एसएसएच की ट्रैफिक कैसे बेसिकली सिक्योरिटी होके जाता है, सिक्योर होके जाता है। ओके, सो लेट मी जस्ट गो फर्दर। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल में बेसिकली हमारे पास दो प्रोटोकॉल आते हैं, वन इज टेलनेट एंड अदर इज एसएसएच। ओके, दोनों ही हमारी कौन सी टाइप की प्रोटोकॉल है, रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है। इट्स नॉट लाइक टेलनेट कोई दूसरी प्रोटोकॉल है, एसएसएच कोई दूसरी प्रोटोकॉल है, इट्स नॉट, इट्स द मिथ। ओके, टेलनेट को हम जिस पर्पज में यूज करते हैं, एसएसएच को भी सेम पर्पज में यूज करते हैं। हमारी जो एक्चुअल गोल है, इट्स नथिंग बट एक्सेसिंग एनी रिमोट सर्विस और एक्सेसिंग एनी रिमोट डिवाइसेस। मेरे पास, मैं दिल्ली में हूँ, मेरी जो क्लाइंट बैठा हुआ है, लेट्स से क्लाइंट मेरी बैठा हुआ है कहाँ पे, गुड़गांव में। ओके, और क्लाइंट की नेटवर्किंग डिवाइसेस में कोई इशू आ रही है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, उस राउटर या फिर स्विच को एक्सेस करूंगा। मेरी गोल क्या है, मैं रिमोटली उस डिवाइस को एक्सेस कर पाऊँ। इट मे बी अचीव्ड बाय टेलनेट और एसएसएच। आप टेलनेट से भी गुड़गांव की जो राउटर है उसे एक्सेस कर सकते हो, या फिर एसएसएच की मदद से भी गुड़गांव की जो राउटर है उसे आप एक्सेस कर सकते हो। देयर इज नॉट एनीथिंग एल्स आउट ऑफ दैट। टेलनेट में ऐसा नहीं हो सकता कुछ दूसरा काम कर सकते हो, एसएसएच में कुछ दूसरा कर सकते हो, नहीं। टेलनेट में भी आप रिमोट एक्सेस करते हो, एसएसएच में भी आप रिमोट एक्सेस ही करते हो। ओके, और दोनों की जो फुल फॉर्म है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। टेलनेट का मतलब होता है टेली टाइप नेटवर्क। ओके, और एसएसएच का मतलब होता है सिक्योर सेल। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, सिक्योर सेल। ओके, क्योंकि एसएसएच में यहाँ पे वर्ड ही बता रहा है सिक्योर, दैट मीन देयर इज सम सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। लेट्स गो एंड डीप डाइव सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे थोड़ी सी हमने क्या लिखा है, ओवरव्यू लिखा है, बेसिकली है क्या, कैसे काम करता है। लेट मी जस्ट गो एंड टोल्ड यू। सो प्रोपज में क्या लिखा है, प्रोपज ऑफ रिमोट एक्सेस, हमारी रिमोट एक्सेस की एक्चुअल काम क्या है, रिमोट एक्सेस एक बंदा या फिर एक नेटवर्क क्यों करे। ओके, रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल अलाउ मैनेजमेंट ऑफ डिवाइस एंड सिस्टम फ्रॉम डिस्टेंस लोकेशन, इनहेंसिंग ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। अब लेट से इसकी एक आपको रियल एग्जांपल बताऊं, लेट से आपकी कोई इशू आ रहा है, इशू की जो लोकेशन है, लेट से आपकी एक साइट है, साइट इन द सेंस आपकी एक ऑफिस है, आपकी एक साइट है विच इज साइट वन। साइट वन आपके कहाँ है, दिल्ली में है। ओके, और आप जहाँ पे बैठते हो, या फिर आपके घर जहाँ पे है, आपकी एक्चुअल ऑफिस जहाँ पे है, या फिर आपके एचओ हेड ऑफिस जहाँ पे है, लेट्स से हेड ऑफिस आपकी कहाँ पे है, हेड ऑफिस आपकी लेके चलो आप बेंगलोर में है। बेंगलोर में आपकी क्या है, हेड ऑफिस है, दिस इज योर हेड ऑफिस। ओके, मतलब इस हेड ऑफिस से आप साइट्स को बेसिकली सर्विस देते हो। ओके, तो ये इंटरनेट के मदद से बेसिकली कनेक्टेड है। ओके, लेट्स से यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, लेट्स से दिस राउटर इज फेसिंग एनी इशू, इस राउटर में कोई आपको इशू बेसिकली फेस कर रहे हो, जिसके वजह से इस साइट में बेसिकली नेटवर्क डाउन है, या फिर इस साइट में नेटवर्क सर्विस बेसिकली डाउन है। सो ट्रेडिशनल मेथड क्या था, जब तक मेरे पास टेलनेट और एसएसएच नहीं थे,
ओके। जब तक मेरे पास टेलनेट और एसएसएच नहीं था, मैं क्या करता था, बेंगलुरु से अपना एक इंजीनियर भेजता था। वो इंजीनियर वाया एयर और वाया आप कह सकते हो मेट्रो, वाया ट्रेन, कोई भी मेथड से वो बेसिकली दिल्ली की साइट पे आता था और फिर इस डिवाइस को चेक करता था। उसके बाद जैसे ही इसके काम खत्म हो जाता था, फिर वो इंजीनियर जो है वो अपनी लोकेशन में वापस चला जाता था। दिस टाइप ऑफ इंजीनियर इज नथिंग बट एफई इंजीनियर। इन टाइप की इंजीनियर को हम क्या कहते हैं, फील्ड इंजीनियर कहते हैं। एफई का फुल फॉर्म होता है फील्ड इंजीनियर। ओके। इस टाइप के इंजीनियर को हम क्या कहते हैं, फील्ड इंजीनियर। जो यहाँ पे परमानेंट नहीं रहेगा, साइट जो दिल्ली की साइट है यहाँ पे परमानेंट नहीं बैठेगा। बस कभी कोई इशू आए तब वो आएगा आपके घर के पास और आके क्या करेगा, इशू को सॉल्व करके, या फिर आपकी कंपनी के पास आएगा, आपके आपकी कंपनी के जो भी इशू होगा आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस में, उसे सॉल्व करके फिर चला जाएगा। लेट आपकी थोड़ी सी यूजर फ्रेंडली एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। लेट से आपने आपके घर में क्या लगा रखा है, घर में आपने ब्रॉडबैंड लगा रखा है। दिस इज योर ब्रॉडबैंड। दिस इज योर बीबी मीन्स ब्रॉडबैंड। ओके। और एयरटेल ऑफिस लेट से कोई दूसरी एक सिटी में है या फिर आपके घर से बहुत दूर में एयरटेल की ऑफिस है, आपने लेट से एयरटेल की एयर फाइबर या फिर फाइबर कनेक्शन वाली ब्रॉडबैंड लगा रखा है। ओके। सो एयरटेल की कोई भी बंदा आपके घर में आके क्या 24/7 रहता है कि ये ब्रॉडबैंड चल रहा है नहीं चल रहा, ऐसा तो नहीं रहता, ऐसा तो नहीं होता। कभी आपकी ब्रॉडबैंड लेट से डाउन होगा या फिर आपके ब्रॉडबैंड में इंटरनेट नहीं आ रहा, तो आप सिंपली क्या करोगे, एक टिकट रेज करोगे या फिर आप एक कॉल करोगे एयरटेल के ऑफिस को, एयरटेल के कस्टमर केयर को आप कॉल करोगे और बोलोगे कि मेरी ये इशू आ रही है, मेरे ब्रॉडबैंड में इंटरनेट नहीं चल रहा है, या फिर मेरी ब्रॉडबैंड में लाइट जल रहा है, या फिर कुछ आप जो भी इशू है आपको बताना पड़ेगा आपके कस्टमर केयर को। सो फिर वो जो कस्टमर एयरटेल की जो कस्टमर सपोर्ट होगा वो क्या करेगा, एक इंजीनियर को अलाइन करेगा आपकी लोकेशन के लिए। सो वो इंजीनियर बेसिकली आपके घर पे आएगा, उस ब्रॉडबैंड को चेक करेगा और बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर चेकअप वो आपको सर्विस देगा। ओके। मे भी हो सकता है वो ब्रॉडबैंड लेके जाए, कोई दूसरा ब्रॉडबैंड लगा दे, या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेंज करेगा। ओके। सो दिस इंजीनियर नथिंग बट वेन एवर यू आर फेसिंग एनी इशू, दिस इंजीनियर आर अलाइन या फिर दिस इंजीनियर इज अलाइन। और इस टाइप की इंजीनियर को हम क्या कहते हैं, एफ इंजीनियर कहते हैं, फील्ड इंजीनियर इसे कहते हैं। ओके। सो ट्रेडिशनल मेथड तो ए था। अभी जब से एसएसएच और टेलनेट हमारे पास अवेलेबल है, हम क्या करते हैं, अगर कोई इशू आ रहा है, लेट्स से ब्रॉडबैंड में कोई इशू आ रहा है, सो हमें बस कॉल करके उन्हें बताना पड़ेगा, दैट्स इट। आपको आपकी एड्रेस बताना पड़ेगा और एड्रेस की बिहाफ में उन्होंने अपने डेटा सेट में मेंशन करके रखे हो गए। लेट्स से दिल्ली में मेरी जो लोकेशन है, लेट्स से लोकेशन है रोहिणी नगर 1234, लेट्स से पिन कोड है। उस पिन कोड के रिलेटेड जो मेरी पब्लिक आईपी चल रहा है और आपके नाम से जो पब्लिक आईपी चल रहा है, उसको वो क्या करेंगे, टेलनेट या फिर एसएसएच करके रिमोटली इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कर लेंगे। लेट्स से अगर फिजिकल कोई इशू है देन वो बंदा अलाइन करेंगे। सो लाइक इस केस में भी सेम है। बेंगलोर से अभी क्या करेगा, कोई भी बंदा आपकी साइट पे नहीं आता। सो कभी भी कोई इशू होता है, आपने भी देखा होगा अपनी कंपनी में, कभी भी कोई इशू होता है, कोई नई डिवाइस अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे तो साइट में बंदा बाय डिफॉल्ट तो नहीं आता। वो पहले क्या कहता है, सर अगर रिमोटली हो सकता है तो मुझे रिमोट दे दो सर्वर या फिर राउटर का। सो आप रिमोट दे दोगे। सो अगर रिमोट में उसने कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल इशू, लेट्स से आपकी हार्डवेयर बेस्ड इशू है, तब वो क्या करेगा, बंदा अलाइन करेगा आपकी लोकेशन के लिए। ओके। सो सेम यहाँ पे भी हमने किया, हम यहाँ पे सेम चीज ही बोले तो रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल अलाउ मैनेजमेंट ऑफ डिवाइस। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, डिवाइस को मैनेज कर सकते हो। मैनेज इन द सेंस आप डिवाइस को फुल्ली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, फुल्ली चेंजेस कर सकते हो। ओके। फ्रॉम डिस्टेंस लोकेशन। ओके। अगर सेम लोकेशन में बैठे हुए तो अलग बात है, आप कंसोल भी लगा सकते हो, आप रिमोटली भी ले सकते हो। ओके। लेकिन जो टेलनेट और एसएसएच प्रोटोकॉल है, इनका मकसद ही यही है कि रिमोट लोकेशन से आप उस लोकेशन में फिजिकल अवेलेबल नहीं हो, सो दैट यू आर यूजिंग टेलनेट और एसएसएच। ओके। सेम दोनों लाइन में सेम चीजें हैं। रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल अलाउ मैनेजमेंट ऑफ डिवाइस और सिस्टम फ्रॉम डिस्टेंस लोकेशन। मतलब लोकेशन आपकी सेम नहीं है, डिस्टेंस लोकेशन है। ओके। इनहेंस ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिकली इसके मदद से हमें क्या मिल रहा है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है और टाइम सेविंग मिल रहा है। ओके। अभी एक बंदा बेंगलोर से आएगा दिल्ली दिल्ली तक आएगा। सो मैं भी उसे 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे या फिर उससे ज्यादा भी लग जाएंगे। सो उतने देर क्या होता है, मेरी प्रोडक्शन नेटवर्क या फिर मेरे मैनेजमेंट नेटवर्क या फिर मेरी कंपनी के नेटवर्क क्या होता है, डाउन रहता। ओके। हुई चीज बिजनेस लॉस, इम्पैक्ट क्या था, मेरी बिजनेस लॉस था। लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास क्या है, रिमोट सपोर्ट एप्लीकेशन है और रिमोट सपोर्ट प्रोटोकॉल्स है। सो एज द मोमेंट है मेरे पास इशू आया, वो रिमोटली बेसिकली क्या करेगा, डिवाइस को एक्सेस करेगा एंड सॉल्व कर सकता है। ओके। which is nothing but your enhancing operational flexibility. Okay. And telnet protocol, पहली जो हमारे पास पहले प्रोटोकॉल आया, ओके, दिस इज नथिंग बट योर टेलनेट प्रोटोकॉल। हमेशा याद रखना, पहले जो आया हमारे पास दिस इज टेलनेट। ओके। फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया आपको, टेली टाइप नेटवर्क।
ओके। और आज भी इंडस्ट्री में अब हाईली यूज होता है, ऐसे नहीं कि सिक्योरिटी नहीं है, बेसिकली टेलेंट में प्रॉब्लम ही है, इसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है। ओके। So telnet offer command line across over TCP/IP but lack of encryption posing security risk in modern network. Basically ये जो पूरी पूरी SSH हो गया, आपके telnet हो गया, दे आर वर्किंग ऑन TCP/IP, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर और क्लाइंट एंड क्लाइंट, वो TCP/IP के ऊपर ही होता है। अगर आपके पास IP एड्रेस नहीं है देन यू कांट एक्सेस दिस पर्टिकुलर रिमोट डिवाइसेस। ओके। लेकिन टैलेंट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, देयर इज नो एन्क्रिप्शन। आपकी जो भी डाटा जाएगा ओवर द इंटरनेट और ओवर द नेटवर्क, वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। आपको जो कोई भी कमांड भेज रहे हो, लेट्स से आपने राउटर की पासवर्ड सेट किया है, सो पासवर्ड भी वो जाएगा कैसे, प्लेन टेक्स्ट में ही जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग आर गोइंग बाय प्लेन टेक्स्ट। ओके। और हमें पता है मॉडर्न नेटवर्क में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज नथिंग बट योर सिक्योरिटी। ओके। उसके बाद फिर टैलेंट में बेसिकली जो प्रॉब्लम था, व्हिच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज देयर इज नो सिक्योरिटी। ओके। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ टैलेंट। और इस सिक्योरिटी को, इस प्रॉब्लम को बेसिकली मिटिगेट करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रोटोकॉल आया, व्हिच इज एसएसएच। एसएसएच का फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया, सिक्योर सेल। Okay, secure cell. Secure cell provide encrypted communication, authentication, integrity, check the security, remote access services sessions. Okay, बेसिकली SSH के अंदर बेसिकली जो भी मेरी प्रॉब्लम्स था, और आप कह सकते हो जो भी मेरी डाउन पॉइंट्स था, और जो भी मेरी लूप होल्स था टेलनेट में, वो सारे लूप होल्स को कवर किसने किया, SSH ने। बेसिकली SSH के अंदर आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, दैट्स मीन्स आपकी डेटा क्या होगा, इनक्रिप्ट होके जाएगा। और लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था इनक्रिप्शन क्या होती है और प्लेन टेक्स्ट क्या होती है। सो एसएसएच के अंदर जो भी डेटा जाएगा, इट इज फुल्ली इंक्रिप्टेड, इंटीग्रिटी एंड चेक सिक्योर रिमोट सेशन। और वो बार बार क्या करेगा, सेशन को भी चेक करता रहेगा कि क्लाइंट और सर्वर के बीच सेशन मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। सो ईच एंड एवरीथिंग आर मेंटेन इन एसएसएच। ओके। सो दैट्स व्हाई एसएसएच इज हाईली रिकमेंडेड इन आईटी इंडस्ट्री। आईटी में कभी भी आप जाना, बाय डिफॉल्ट वहां पे एसएसएच चल रहा होगा, दैट्स बिकॉज इट इज सिक्योरिटी। ओके। देयर इज फुल्ली सिक्योर, द प्रोटोकॉल इज फुल्ली सिक्योर। और एसएसएच जो है, दिस इज मेंटेन सीआईए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। जो हमारी सीआईए ट्रायंगल है, सिक्योरिटी के जो ट्रायंगल है, इसको मेंटेन कौन करता है, एसएसएच मेंटेन भी करता है, व्हिच इज नॉट मेंटेन बाय अर्लियर टेलनेट। ओके। एडवांटेजेस नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क जो मैनेजमेंट में कर रहा हूँ, ओके, उसकी एडवांटेजेस क्या है, रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एफिशिएंटली अक्रॉस राउटर एंड सर्वर। बेसिकली क्यों, क्योंकि पहले मैं क्या करता था, एक लोकेशन में कोई इशू आ रहा है तो मैं वहां पे फिजिकल जाता था। तो एक तो फिजिकल जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग, ऑल्सो प्रोडक्शन लॉस मेरे पास हो रहा था, व्हिच इज लीडिंग टू हायर डाउन टाइम। ओके। एंड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, व्हिच इज कॉस्ट, कॉस्ट भी ज्यादा होता था। लेट्स से इंजीनियर फ्लाइट से आ रहा है, सो 8-9 हजार तो उसकी ऐसे ही कॉस्ट बन जाएगा, या फिर आप ट्रेन से आ रहे हो या फिर वाया टैक्सी आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, तो कॉस्ट सेविंग नहीं था। टेलनेट जो आपकी जो विदाउट टेलनेट ऐसा से जो फिजिकल एफई वाली जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, उसमें बेसिकली क्या था, कॉस्ट बहुत ही ज्यादा था। लेकिन जब से टेलनेट और एसएसआई आए हुए हैं, सो दीज आर द कॉस्ट सेविंग मेथड्स। बेसिकली कोई भी इशू हो रहा है तो उसे रिमोटली कर दो। ओके, दिस दैट्स व्हाई इंडस्ट्री इज हाईली रिकमेंडेड एसएसएच और टेलनेट प्रोटोकॉल इंस्टेड ऑफ फिजिकल विजिट। सो आज की जो टेक्नोलॉजी है, इसमें आप कोई भी बंदा फिजिकल साइट में नहीं जाता, वो बेसिकली रिमोटली एक्सेस कर देता है। ओके। इसको आप ऐसा समझ सकते हो, पहले पहले की जो इंटरव्यू होती थी, ओके, लेट्स से पहले आपको जॉब लेना है, सो पहले आपको अगर इंटरव्यू जॉब लेना है, आपको क्या करना होता था, अगर इंटरव्यू देना होता था, तो पहले की जो इंटरव्यू टेक्निक्स थी, दीज आर फिजिकल इंटरव्यू। ओके। कोई भी कंपनी की अगर रिक्वायरमेंट ओपन है या फिर वैकेंसी है, तो आपको उस कंपनी में जाना पड़ेगा, फिजिकल जाके फेस टू फेस बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन आज की दुनिया जो है, इसमें हम क्या करते हैं, स्काइप है हमारे पास, टीम्स है, या फिर गूगल मीट है, या फिर जूम कॉल है। इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में, ऑनलाइन से मदद से, या फिर आप कह सकते हो रियल टाइम में वाया द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, हम क्या कर पा रहे हैं, जो इंटरव्यूअर है और जो भी इंटरव्यू दे रहा है, जो भी कैंडिडेट है, दोनों इंटरेक्ट कर पा रहे हैं इन सेम प्लेटफॉर्म। सो सेम चीज है कि सेम चीज बेसिकली आपकी एसएसआई है और टेलनेट। ओके। रियल टाइम में बेसिकली आपको सोल्यूशन देता है इंस्टेंट ऑफ फिजिकल विजिट। आपको फिजिकल विजिट नहीं करना, आपको क्या करना है, रिमोटली करना है। आप अपने घर में बैठे हुए, एचआर अपने घर में बैठा हुआ है, एंड यू आर कनेक्टिंग ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट। ओके। देन थोड़ा सा हम देखते हैं टेलनेट प्रोटोकॉल की ओवरव्यू। बेसिकली टेलनेट प्रोटोकॉल है क्या, कैसे काम करता है, बहुत सारी चीजें देखते हैं। ओके। सो व्हाट इज टेलनेट। अगर टेलनेट की बात करूं, टेलनेट इज नथिंग बट, जैसे मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, दिस इज नथिंग बट टेली टाइप नेटवर्क।
ओके, एंड बहुत सारे इंटरव्यूअर आपको ये पूछते भी है, अगर इफ यू आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब इन L1 और डेस्कटॉप सपोर्ट, एंड आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है टेलेंट का फुल फॉर्म बताओ। ओके, so Telnet enable a bidirectional interactive text communication using a virtual terminal over TCP/IP typically on port number 23। तो इससे हमें क्या पता चला, ये जो टेलनेट है, इस पहले बात तो हमें टेलनेट की फुल फॉर्म पता चल गया। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेलनेट मंजित? सर टेली टाइप नेटवर्क। या, एंड व्हाट इज द पोर्ट नंबर? नंबर 23। ओके या, सर। इट्स वर्किंग ऑन पोर्ट नंबर 23। और ये आपको कौन सी टाइप की सर्विस देता है? ये आपको CLI बेस्ड सर्विस देता है, कमांड लाइन बेस्ड सर्विस आपको ये प्रोवाइड करता है। ओके, गॉट इट? ओके, और यस सर। ये कमांड लाइन सर्विसेज जानने से पहले लेट मी जस्ट टोल्ड यू देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक आपके पास कम्युनिकेशन होता है, उन्हें यूनि डायरेक्शनल। ओके, और दूसरा होता है आपके पास बायो डायरेक्शनल। ओके, यूनिडायरेक्शनल का इन द सेंस, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, आपके पास आती है क्या फ्रॉड कॉल, या फिर कह सकते हो आपके पास कस्टमर सपोर्ट की कॉल आती है, उसमें आप कुछ भी बोलते रहो, वो जो बोलने के लिए आया हुआ है वो बोलेगा और कॉल कट जाएगा अपने आप। बेसिकली वो जो कॉल होता है वो कौन करता है? आपको बॉट कॉल करता है, मतलब AI कॉल करता है, आप कह सकते हो। ओके, इसमें बेसिकली मार्केटिंग किसकी कॉल हो गया, कुछ भी हो सकता है आपका। वो यूनि डायरेक्शन बेसिकली इस टाइप के कॉल्स होते हैं। यूनि डायरेक्शन इन द सेंस आपकी डेटा सिंगल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आप कोई डेटा सर्वर को दे रहे हो, दैट्स इट, आप बस भेजते जा रहे हो, आप डेटा कोई भी रिट्रीव नहीं कर रहे, या फिर आप कोई भी डेटा सर्वर से अपनी सिस्टम में नहीं दे रहे। ओके, आप अगर सिंगल डायरेक्शन में डेटा को भेज रहे हो, ओके, एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी डेटा फ्रॉम द सेम डायरेक्शन, सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नथिंग बट यूनि डायरेक्शन। इस टाइप की कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? यूनि डायरेक्शन। जैसे आपके पास होते थे ना पहले के जमाने में, मतलब लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज पहले के जमाने में होते थे, लाइक आप कह सकते हो वाकी टोकी। वाकी टोकी में क्या होता था, पहले आप बात करोगे एट अ टाइम, मल्टीपल बंदे का बात नहीं कर सकते। पहले कोई एक बंदा बात करेगा, फिर वो ओवर एंड आउट या फिर उनकी जो भी कोड वर्ड होगा वो बोलेगा, उसके बाद दूसरा बंदा बोलेगा। अगर सेम टाइम में सारे बंदे बोलेंगे देन दे आर कोलाइड, उनके डाटा क्या हो जाता था? कोलाइड होता था। लाइक द सेम यूनि डायरेक्शनल डाटा क्या होती है? सिंगल डायरेक्शन में आपके डाटा ट्रैवल करेगा। लेकिन बायो डायरेक्शनल में क्या होता था? डेटा आपकी बोथ डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आपको बताऊं, आपने वन वे रोड देखा होगा, जहां पे एक साइड में बस गाड़ियां जाती है, दूसरे साइड में बस गाड़ियां आती है। सो लाइक द सेम, अगर एक साइड में मेरी गाड़ियां बस जा ही रहे हैं और उस सेम डायरेक्शन में मेरी गाड़ी रिटर्न नहीं कर सकता, दिस इज नथिंग बट हम क्या कहते हैं? सिंगल डायरेक्शन रूट। ओके, या फिर आप कह सकते हो सिंगल रूट। सो सेम नेटवर्किंग में हम उसे क्या कहते हैं? यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन इन द सेंस, जो आपके डेटा है वो एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, आप बस बोल सकते हो, या फिर आप बस सर्वर को कोई डेटा दे सकते हो, लेकिन सर्वर से कोई डेटा आप ले नहीं सकते। दिस इज नथिंग बट यूनिडायरेक्शनल। बट ये जो आपका था बायो डायरेक्शनल, बायो डायरेक्शनल इज सिमिलर लाइक अ टू वे रोड्स। इसमें क्या था? आपकी गाड़ियां जा भी रहे हैं, गाड़ियां आपके आ भी रहे हैं। सो लाइक द सेम बायो डायरेक्शनल में क्या था? आप सर्वर को डेटा भी दे रहे हो, आप सर्वर से डेटा उठा भी रहे हो, दिस इज नथिंग बट बायो डायरेक्शनल। अगर इसकी और एक एग्जांपल आपको बताऊं, लेट्स से दिस इज आवर पेज, ये हमारी ऑफिशियल पेज है। इसके अंदर अगर मैं आपको कुछ इसके अंदर अगर आपको एक एग्जांपल दूं, इसके अंदर बस आप ये नहीं कि मैं कोर्स के ऊपर क्लिक किया बस मुझे कोर्स दिख रहा है, या फिर कम्युनिटी के ऊपर क्लिक किया मुझे कम्युनिटी दिख रहा है। अगर आपको बस डेटा दिखना ही हमारे पर्पस था, बस आप देख सकते हो, कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ अलग कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर, दिस इज ए यूनिडायरेक्शनल पेज। इस पेज की मदद से हम बस डेटा आपको दिखा रहे हैं, आपसे कोई डेटा ले नहीं रहे, दिस इज नथिंग बट यूनिडायरेक्शनल पेज हो सकता। लेकिन अभी जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, इसके ऊपर आप एडमिशन भी ले सकते हो, इसके अंदर आप अपनी LMS को भी एक्सेस कर सकते हो, अपनी लैब को एक्सेस कर सकते हो। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? अपनी कोई लेट से इंक्वायरी है, आप वहां पे डाल सकते हो। लेट से इफ यू गाइस आर हैविंग एनी सपोर्ट, आप यहाँ पे जाओगे, सपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे, अपनी जो भी क्वेरी होगा चैट व्हाट्सएप की मदद से हमें बता सकते हो। सो आप यहाँ पे इस वेबसाइट की मदद से आप क्या कर सकते हो? कुछ डेटा हमसे ले भी पा रहे हो, कुछ डेटा अगर आपके माइंड में है वो आप हमें बता भी पा रहे हो। दैट्स मीन दिस वेब पेज इज नथिंग बट टू वे कम्युनिकेशन। आपकी डेटा हमारे तक पहुंचा रहा है और हमारा डाटा आपके तक पहुंचा रहा है। सो दिस इज नथिंग बट बायो डायरेक्शनल वेब पेज आप कह सकते हो। सो लाइक द सेम, अगर आपके पास कभी टर्म आपने सुनना फ्यूचर में आप सुनते हो, या फिर आपको आपके इंटरव्यूअर पूछ रहा है व्हाट इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ ट्रैफिक इन व्हिच ट्रैफिक इज मूविंग इन वन वे। आपकी जो ट्रैफिक है वो सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन बायो डायरेक्शनल में क्या होता है? आपकी जो ट्रैफिक है बोथ डायरेक्शन में मूव करता है, आप सेंड भी कर पाते हो, आप डाउनलोड भी कर पाते हो।
दिस इज नथिंग बट बायो डायरेक्शनल। लेट से आप सिर्फ और सिर्फ सेंड कर पा रहे हो, दिस इज योर यूनिडायरेक्शनल। या फिर आप सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड कर पा रहे हो, दिस इज योर ऑल्सो यूनिडायरेक्शनल। ओके, सो सेम चीज है यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे हमें क्या पॉइंट्स था, दिस इज ए बायोडायरेक्शनल इंटरेक्टिव टेक्स्ट कम्युनिकेशन। बायोडायरेक्शनल में टेलनेट की मदद से आप कोई भी कमांड या फिर कोई भी सिस्टम को रिमोट पे ले भी सकते हो और अपनी सिस्टम को रिमोट पे दे भी सकते हो। कोई भी राउटर को आप रिमोटली लेके उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो और जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया उसको आप अपनी सिस्टम तक ला भी सकते हो। सो दैट्स व्हाई टेलनेट इज बायोडायरेक्शनल। इसमें आप दोनों साइड में कम्युनिकेशन कर सकते हो, ए बी से भी बात कर सकता है, बी ए से भी बात कर सकता है। ओके, इसकी और एक एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं, लेट्स से देयर इज ए गाय, देयर इज अ बी गाय। अगर ए सिर्फ बी को डेटा भेज रहा है या फिर ए सिर्फ और सिर्फ डेटा कुछ दे रहा है बी को, दिस इज नथिंग बट यूनिडायरेक्शनल। ओके, लेट्स से सेम चीजों को हम दूसरा लेते हैं, यहाँ पे ए कुछ डेटा बी को देता है और बी कुछ डेटा ए को देता है, दिस इज योर बायोडायरेक्शनल। ओके, या फिर आप कह सकते हो बाई डायरेक्शनल। ओके, सो हमें क्या क्या पता चल गया, टेलनेट एंड टेलनेट इज नथिंग बट इट क्रिएट ए बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। मतलब दोनों साइड से, सर्वर क्लाइंट को भी पूछ सकता है, क्लाइंट सर्वर को भी पूछ सकता है, दिस इज क्रिएटिंग ए बायो डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। और जो इंटरेक्टिव वो है, या फिर टेलनेट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, वाया द हेल्प ऑफ दिस सीएमडी की मदद से, या फिर मल्टीपल पुट्टी हो गए, आपके हाइपर टर्मिनल हो गए, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप एक्सेस कर सकते हो। और जो टेलनेट जो है वो आपको कैसा डिस्प्ले देता है, दीज आर प्रोवाइडिंग है इंटरेक्टिव टेक्स्ट बेस्ड टर्मिनल। ओके, आपको बेसिकली एक CLI बेस्ड टर्मिनल वो देता है जिसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो। ओके, और उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल टर्मिनल कहते हैं। किसके ऊपर है काम करता है, TCP IP के ऊपर है काम करता है। एंड पर्टिकुलर पोर्ट नंबर किसके ऊपर है काम करता है, पोर्ट नंबर 23 के ऊपर है काम करता है। दिस इज रिमेम्बरेबल, ये बहुत सारे क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाता है, टेलनेट बेसिकली कौन सी पोर्ट नंबर में काम करता है। टेलनेट बेसिकली पोर्ट नंबर 23 को यूज करता है। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज यूजिंग बाय TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज करता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो टेलनेट इज नथिंग बट this is enable bidirectional interactive text communication using a virtual terminal over the TCP IP having port number 23 and working over TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है इसके ऊपर बेसिकली ये काम करता है। दैट्स मीन्स इफ देयर इज सम इशू, देन यह क्या कर सकता है, एरर को क्लियर भी कर सकता है, एरर चेकसम कर सकता है, या फिर आपको एक्नॉलेजमेंट भी दे सकता है। ओके, एंड सिक्योरिटी लिमिटेशन, जैसा मैंने पहले भी कहा था, टेलनेट के अंदर जो सबसे बड़ा लिमिटेशन था, दिस इज सिक्योरिटी। दैट्स मीन्स टेलनेट में आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं था। टेलनेट ट्रांसमिट यूजर नेम एंड पासवर्ड इन प्लेन टेक्स्ट। ओके, मेक इट इज वल्नरेबल इंटरप्शन एंड अटैक्स। बेसिकली कोई भी, अगर आप, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी HTTP और HTTPS देखा था, उसमें अगर मेरी डेटा या फिर मेरी नेट इंटरनेट बैंकिंग की यूजर आईडी और पासवर्ड ओवर द इंटरनेट प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, सो कोई भी आटा कर क्या कर सकता है, उस यूजर आईडी और पासवर्ड को लेके अपनी हमारी इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकता है। सो लाइक द सेम, अगर यहाँ पे मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड ओवर द इंटरनेट क्या जा रहा है, प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, सो कोई भी हैकर मेरी यूजर आईडी और पासवर्ड और IP, एक्चुअली जो टेलनेट में आपकी डेटा जाता है, दिस इज फुल्ली प्लेन टेक्स्ट। ओके, सो हर जो भी डेटा जा रहा है, अगर कोई भी हैकर के हाथ वो डेटा लग गया, देन द हैकर कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर डिवाइसेस और दैट पर्टिकुलर सर्विसेज एंड मेक देयर सेल्फ मॉडिफिकेशन, कुछ भी चेंजेस कर सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ सिक्योरिटी लिमिटेशन इन टेलनेट। टेलनेट के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, देयर इज अ सिक्योरिटी लिमिटेशन, दैट्स मींस ईच एंड एवरीथिंग आर गोइंग वाया टेलनेट is fully plain text. Okay, then legacy uses and importance, telnet remain a use of legacy system troubleshooting despite being legacy disabled। बेसिकली टेलनेट आज के टाइम में, टेलनेट जो है आज के टाइम में भी बहुत ही ज्यादा क्रेज में है, या फिर आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा यूज में है। क्यों? क्योंकि टेलनेट जो है इट इज अ लेगेसी प्रोटोकॉल। लेगेसी प्रोटोकॉल इन द सेंस, बेसिकली SSH आने से पहले जो आपके सर्वर्स थे, वो जो आपके राउटर्स थे, जो आपके डिवाइसेस थे, उनमें बाय डिफॉल्ट क्या आता था, टेलनेट आता था। जैसे अभी हमारे पास क्या है, BS6 है, गाड़ी की अगर मॉडल की बात करूं, वी आर हैविंग BS6, लेकिन अभी भी BS4 भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले की गाड़ियां थे वो भी आज मार्केट में लाइव है। सो लाइक द सेम, जो आज जो पुराने सर्वर्स है, जो पुराने राउटर है, जो पुराने नेटवर्किंग डिवाइसेस है, आज भी उनमें क्या चल रहा है, टेलनेट चल रहा है, जस्ट बिकॉज टेलनेट इज बाय डिफॉल्ट इन दैट पर्टिकुलर डिवाइसेस। उसके अंदर SSH नहीं है, तो आज आप उससे क्या करोगे, SS टेलनेट की मदद से ही एक्सेस करोगे। सो दैट्स व्हाई टेलनेट इज लेगेसी। ओके,
एंड दिस इज ए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टेलनेट। ओके, टेलनेट ऐसा नहीं कि अगर एक पुरानी सर्वर है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट टेलनेट है, उसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते और उसके अंदर आप एसएसएच को इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एसएसएच को सपोर्ट ही नहीं करेगा। ओके, और टेलनेट की अगर थोड़ी बात करें आगे, लेट्स से बिफोर गोइंग टू डीप एंड डाइव टेलनेट, लेट्स गेट ए ओवरव्यू ऑफ एसएसएच। एसएसएच का फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया था, एसएसएच स्टैंड फॉर सिक्योर सेल। ओके, yes, SSH is nothing but secure cell। again secure, यहाँ पे वर्ड ही क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे वर्ड आ रहा है which is nothing but secure। ओके, अगर वर्ड ही मेरे पास आ रहा है सिक्योर, दैट मीन देयर इज सम सिक्योरिटी पॉइंट। यहाँ पे जो मेरी पॉइंट्स थी बेसिकली टेलनेट में, जो मेरी प्रॉब्लम्स थी लाइक सिक्योरिटी वायोलेशन हो रहा था, दीज आर मिटिगेटेड इन एसएसएच। ओके, एसएसएच की अगर बात करूं, सिक्योर रिमोट एक्सेस, ये जो सर्वर और क्लाइंट या फिर क्लाइंट टू क्लाइंट जो आपको सर्विस या फिर रिमोट एक्सेस देता है, दिस इज फुल्ली सिक्योर, फुल्ली इनक्रिप्टेड, फुल्ली साइफर टेक्स्ट। एसएसएच प्रोवाइड सिक्योर रिमोट लॉगिन ओवर अनसिक्योर नेटवर्क, इंश्योरिंग डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। ओवर द इंटरनेट हो गया, ओवर द इंट्रानेट हो गया, जो आप रिमोट एक्सेस करते हो, जो आप रिमोट पे कोई भी सर्वर कोई भी राउटर को एक्सेस करते हो, दे आर फुल्ली इनक्रिप्टेड। ओके, दे आर फुल्ली कॉन्फिडेंशियल। जो भी डेटा जाएगा उसके अंदर वो क्या आ गया, साइफर टेक्स्ट में जाएगा। वो बेसिकली हैकर को पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज सम कॉन्सेप्ट ऑफ की, जो मैंने की आपको पहले बताया था लास्ट सेशन में, वो की कॉन्सेप्ट वहां पे लेके चलता है। वो बेसिकली प्राइमरी की पब्लिक की बना के सेशन बना के प्रॉपर वे में इनक्रिप्ट करके डेटा को फिर आगे जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके, ओके, बिस्मय ज्वाइन। ओके, देन स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड, जो आपकी एसएसएच प्रोटोकॉल था, जो हमने पहले देखा था टेलनेट के अंदर, कोई भी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल नहीं था, कोई भी सिक्योरिटी नहीं था, लेकिन ये जितने भी लूप होल्स थे मेरे टेलनेट के साथ, ऑल आर कवर्ड इन एसएसएच। एसएसएच के अंदर सारे चीज मिटिगेट हो गए। एसएसएच के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड है, दैट्स मीन्स आप जब कभी यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया एंड वो खुल जाएगा, नहीं। उसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, लाइक आपके पास एसएचए एल्गोरिदम हो गया, ओके, आरएसए एल्गोरिदम हो गया, बहुत सारे एल्गोरिदम्स है जिसको लेके वो क्या करता है, आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड को फुल्ली इनक्रिप्ट करता है। और अगर आप आर एस एच और एसएसएच और MD5 एल्गोरिदम का यूज कर रहे हो, और वहां पे आपको वो पावर भी है, यू कैन चूज द की साइज। आप वहां पे की साइज भी चूज कर सकते हो, लाइक की साइज मेरी 1008, 1000 की साइज रहेगा, 1028 रहेगा, 2048 रहेगा। आप की साइज भी चेक कर सकते हो या फिर सेट कर सकते हो। वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, देन सपोर्ट पासवर्ड एंड की बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑफरिंग रोबस्ट सिक्योरिटी कंपेयर टू टेलनेट। जो प्रॉब्लम्स टेलनेट के था, लाइक यूजर आईडी ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम था, टेलनेट की जो यूजर आईडी जा रहा था, बेसिकली टेलनेट के अंदर भी आप यूजर आईडी पासवर्ड ही डालते थे, लेकिन देयर इज नो ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं होता था, सब कुछ प्लेन टेक्स्ट में होता था, जस्ट बिकॉज एसएसएच इज सिक्योर इनक्रिप्टेड फॉर्म। सो एसएसएच इज डूइंग प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे क्या होता था, आपकी प्रॉपर एसएसएच के अंदर क्या होता है, आपकी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होती है, प्रॉपर यूजर आईडी जाएगा, ऑथेंटिकेशन होगा, आफ्टर दैट यू आर एक्सेसिंग योर डिवाइस, अदरवाइज यू कांट एक्सेस योर रिमोट डिवाइस। ओके, देन एडिशनल फीचर्स क्या है एसएसएच के अंदर, इंक्लूडिंग सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टनलिंग, इनहेंसिंग नेटवर्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। बेसिकली टेलनेट में बेसिकली मेरे पास एक लिमिटेशन था, दैट मीन्स टेलनेट की मदद से मैं सिर्फ और सिर्फ रिमोट डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता हूँ, आउट ऑफ दैट वी कांट डू एनीथिंग। टेलनेट की मदद से मैं बस रिमोट सर्विसेज, रिमोट सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन एसएसएच की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फाइल भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा भी था, इन एफटीपी सेशन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एसएफटीपी। ओके, व्हिच इज नथिंग बट सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो क्या यूज करता था, एसएसएल एंड टीएसएल को यूज करते करके बेसिकली फाइल को सिक्योरली ट्रांसफर करता था। सो एसएसएच जो है, इट्स नॉट लाइक एसएसएच की मदद से आप क्या कर सकते हो, रिमोटली डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ टेलनेट की मदद से आप क्या कर सकते हो, रिमोटली डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन एसएसएच जो है, इसकी जो प्राइमरी गोल है टू एक्सेस डिवाइसेस रिमोटली, जो प्राइमरी जो गोल है, जो इसका फर्स्ट टास्क है, टू एक्सेस रिमोट डिवाइस रिमोटली। लेकिन एसएसएच की मदद से आप मल्टीपल काम भी कर सकते हो, लाइक आप फाइल भी ट्रांसफर कर सकते हो, आप कोई सर्विसेज या फिर टनल्स को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, आप बहुत सारे काम कर सकते हो वाया द हेल्प ऑफ दिस एसएसएच। लाइक आपके पास पहले क्या था, लेट्स से अर्लियर सेशन, लेट्स से आपके पास पहले क्या था, आपके पास फाइल ट्रांसफर करने के लिए लेट्स से दूसरा कोई प्रोटोकॉल था, लाइक फाइल ट्रांसफर करने के लिए आपके पास एफटीपी था, और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या था, देयर इज नो सिक्योरिटी।
और रिमोट एक्सेस करने के लिए आपके पास टेलनेट था और इसके अंदर भी प्रॉब्लम था, देयर इज नो सिक्योरिटी। लेकिन अभी मेरे पास एक ही प्रोटोकॉल है व्हिच इज नथिंग बट योर एसएसएच। इसके मदद से मैं फाइल भी ट्रांसफर कर सकता हूँ और इसके मदद से मैं रिमोट सर्विसेज को एक्सेस भी कर सकता हूँ और यहाँ पे सिक्योरिटी भी मुझे मिल रहा है। लाइक वन प्रोटोकॉल मल्टीपल सर्विसेज। एसएसएच को इंस्टॉल करने के एसएसएच को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक सिर्फ और सिर्फ आप रिमोट डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हो, नहीं, आप इसके अंदर फाइल भी अपलोड कर सकते हो, आप टनल्स क्रिएट कर सकते हो सिक्योरली, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो व्हिच इज फुल्ली सिक्योर। ओके, then use in IT. SSH is a standard tool for managing server, router and switches securely in modern network. जो मॉडर्न नेटवर्क है इसके अंदर धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, टेलनेट से थोड़ी सी दूरियां बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेलनेट की जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इट्स सिक्योरिटी, और मॉडर्न नेटवर्क में या फिर मॉडर्न इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा जो पॉइंट है दिस इज सिक्योरिटी। ओके, अगर आप सिक्योरिटी में नहीं हो दैट्स मीन्स यू आर नॉट इन सेफ जोन। सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम आज की जो मॉडर्न इंजीनियरिंग है या फिर मॉडर्न मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उनकी जो एक्चुअल गोल होती है या फिर प्राइमरी गोल होता है दिस इज सिक्योरिटी। और अगर मुझे रिमोटली कोई भी डिवाइस को एक्सेस करना है, वहां पे सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स से मैं ओवर द कॉल किसी से बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल बात, सो दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट गाइस। अगर आप लेट्स से फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो, दिस इज ए सेपरेट थिंग। अगर आप ओवर द इंटरनेट या फिर कॉल करके किसी को कोई कॉन्फिडेंशियल बात बता रहे हो, सो वहां पे आपको बहुत सारे चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लाइक कस्टमर सर्विसेज वहां पे क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते थे, या रिकॉर्डिंग करता होगा, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी आपकी कॉल को सुन भी सकता है। सो वहां पे बहुत सारे आपको पॉइंट्स काउंटर मेजर लेने होते हैं। सो लाइक द सेब, अगर आप यहाँ पे कोई एक लोकेशन में बैठ के कोई दूसरी लोकेशन के डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो, सो वहां पे सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको लोकेशन ए और लोकेशन के बीच में क्या है आपको पता ही नहीं है, क्योंकि लोकेशन ए और लोकेशन बी के बीच इंटरनेट है और ओवर द इंटरनेट फुल ऑफ थ्रेड्स, और इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे हैकर्स बैठे हुए हैं। हो सकता है वो आपकी डेटा को हैच कर रहे हो, आपकी डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो। सो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक सिक्योरिटी मेथड चाहिए व्हिच इज कंप्लीटेड बाय द हेल्प ऑफ दिस एसएसएच। गॉट इट गाइस? गॉट इट विस्मय? गॉट इट मंजीत? गॉट इट रजत? सर रजत इन यस। ओके, देन टेलनेट वर्सेस एसएसएच। जो सबसे बड़ा पॉइंट्स आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, या फिर आप इफ यू आर डूइंग सीसीएनए, अगर आप सीसीएनए की ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए तैयार कर रहे हो, देन देयर इज अ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन भी मिलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेलनेट एंड एसएसएच, टेलनेट की पोर्ट नंबर क्या है, एसएसएच की पोर्ट नंबर क्या है, कौन सी सर्विसेज को यूज करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं सीसीएनए में। ओके, सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू टेलनेट वर्सेस एसएसएच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन टेबल बेसिकली क्रिएट किया है। इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे आपको फीचर्स मिलेंगे, दिस इज फॉर टेलनेट कॉलम, दिस इज फॉर एसएसएच कॉलम। ओके, लेट डिस्कस वन बाय वन। अगर पोर्ट के बारे में मैं बात करूं, टेलनेट यूज पोर्ट नंबर 23, ओके, एंड एसएसएच यूज पोर्ट नंबर 22। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बंदे या फिर इंजीनियर क्या करते हैं, जब इंटरव्यूअर के सामने होते हैं थोड़ी सी नर्वस में, वो क्या कर देते हैं, टेलनेट की जो पोर्ट नंबर है वो 22 है, एसएसएच की जो पोर्ट नंबर है दिस इज 23। नहीं, ये चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। जो टेलनेट होता है दिस इज यूज पोर्ट नंबर 23, जो आपकी एसएसएच होता है वो यूज करता है पोर्ट नंबर 22 को, और दोनों ही आपके टीसीपी को यूज करते हैं। ओके, और इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन इन द सेंस सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी वो टेलेंट में है ही नहीं, देखो यहाँ पे नो लिखा हुआ है, जो सिक्योरिटी है वो टेलेंट में है ही नहीं। सेम हैंड में जो आपके एसएसएच है उसमें सिक्योरिटी है, आपको सिक्योरिटी मिलता है किसमें, एसएसएच में। ओके, एंड सिक्योरिटी की अगर बात करूं, टेलनेट के अंदर वेरी लो सिक्योरिटी, वेरी लो सिक्योरिटी इन द सेंस टेलनेट के अंदर आप यूजर आईडी पासवर्ड सेट कर सकते हो लेकिन ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते। सो लाइक द सेम, टेलनेट के अंदर आपकी जो सिक्योरिटी है दिस इज वेरी लो, बट अगर सेम अदर हैंड में मैं देखूं, एसएसएच जो है इट इज फुल्ली और हाईली सिक्योर। ओके, फाइल ट्रांसफर, टेलनेट की मदद से मैं फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकता। ओके, लेकिन जो एसएपी जो एसएसएच है उसके मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, फाइल ट्रांसफर कर सकता हूँ। और दो मैंने यहाँ पे प्रोटोकॉल भी, दो मैंने सर्विसेज भी लिख रखा, वन इज एससीपी, ओके, अनदर इज एसएफटीपी। ओके, ये सारे बेसिकली जो टूल्स है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, एसएसएच को यूज करके फाइल ट्रांसफर करते हो। ओके, ऑथेंटिकेशन की अगर बात करूं, टेलनेट बस पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एसएसएच में पासवर्ड एंड की बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। यहाँ पे पब्लिक की प्राइमरी की कॉन्सेप्ट है किसमें, एसएसएच में, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड पब्लिक की इनसाइड टेलनेट। गॉट इट मंजित? यस सर।
ओके, अगर आपको किसी को रेकमेंड करना है, लेट्स से यू आर L3 गाय और आपको L2 इंजीनियर को बताना है SSH कॉन्फ़िगर करो या फिर टेलनेट, आप क्या रेकमेंड करोगे, SSH या टेलनेट? SSH सर, फॉर व्हाई? सिक्योरिटी रीजन। ओके, गुड। ओके, देन एडवांटेजेस की अगर आपको बात करूं, लेट्स देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस इनसाइड टेल SSH इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेलनेट। सिंपलिसिटी, अगर टेलनेट की मैं एडवांटेजेस की बात करूं, टेलनेट की कुछ प्रॉप्स एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूं, टेलनेट बहुत ही ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। क्यों? टेलनेट के प्रॉप्स की अगर या फिर टेलनेट की एडवांटेजेस की अगर आपको बात करूं, सिंपलिसिटी एंड लो रिसोर्स यूजेस। Telnet is simple to configure and operate efficiently in isolated trusted network environment. Let's say, इसका मतलब सिंपल है, टेलनेट जो है, टेलनेट बहुत ही ज्यादा कम रिसोर्स यूटिलाइज करता है। रिसोर्स इन द सेंस, अगर आपको मैं रिसोर्स दिखाऊं, आप अपने सिस्टम में जाओ, टास्क मैनेजर में जाओ, टास्क मैनेजर में ये जो पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। दैट्स मीन्स यहाँ पे मेरी सीपीयू जो है, वो मेरी क्रोम ब्राउजर 8.4 रैम को सीपीयू को यूज कर रहा है। बेसिकली रैम की अगर बात करूँ 1124 एमबी को यूज कर रहा है। दीज आर द रिसोर्स यूटिलाइजेशन इनसाइड माई कंप्यूटर। ओके, सो लाइक द सेम, आपकी जो राउटर होती है, जो आपकी सर्वर होती है, उसकी भी एक सीपीयू होता है, उसकी भी एक रैम होती है, उसकी भी एक रोम होती है। ये सारे डिवाइसेस उसके अंदर भी होते हैं। ओके, बहुत सारे हम देखेंगे जब हम जो जाएंगे बेसिकली उस डिवाइसेस की पार्ट में। ओके, इन सारों को भी, अगर आप कोई भी प्रोटोकॉल चला रहे हो, कोई भी पोर्ट को ऑफ कर रहे हो, कोई भी यूजर बना रहे हो, कोई भी टेलनेट सर्विस या फिर एसएसएस सर्विस को ऑन कर रहे हो, ये सारे भी यूटिलाइज होते हैं अपने आप। ओके, सो लाइक द सेम, अगर मैं टेलनेट की बात करूँ, टेलनेट बहुत ही कम रिसोर्स यूटिलाइज करता है। ओके, अगर मैं भी अगर एग्जाम्पल करूँ, टेलनेट आपकी 1% सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है, रैम की अगर बात करूँ 1% यूज कर रहा है, और रोम की अगर बात करूँ अगर 1% यूज कर रहा है। सो टेलनेट की जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, इट इज वेरी लो। व्हाई? जस्ट बिकॉज टेलनेट इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। टेलनेट यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दे रहा, यहाँ पे पब्लिक की प्राइवेट की कुछ भी शेयर नहीं कर रहा, बस यूजर आईडी आपने डाल दिया, बस काम होता रहेगा आपका। ओके, सो टेलनेट यहाँ पे कोई इंक्रिप्शन नहीं कर रहा, कोई यहाँ पे टीसीपी हैंडशेक नहीं कर रहा। ओके, कोई आपकी की एक्सचेंज नहीं कर रहा, कोई यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, कोई आपकी ऑथराइजेशन कुछ भी नहीं कर रहा टेलनेट। ओके, दैट्स व्हाई टेलनेट यूज वेरी लेस रिसोर्सेस। ओके, सेम थिंग्स मैंने यहाँ पे लिखा है, टेलनेट आपकी क्या कर रहा है, एफिशिएंटली जो आपके रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर रहा है, ये बहुत ही कम रिसोर्स यूटिलाइजेशन करता है, जस्ट बिकॉज देयर इज नो इनक्रिप्शन कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करता। दैट्स व्हाई इट यूज वेरी लो रिसोर्स। अगेन, तो दूसरी बड़ी पॉइंट है, टेलनेट आज भी बहुत सारे कंपनी में यूज होता है। लेट से आपकी कंपनी बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, लेट से आपकी कंपनी में बहुत सारे फायरवॉल आपने लगा रखा है, आपने आपकी जो कंपनी है या फिर आपकी जो एनवायरनमेंट है, दिस इज फुल्ली सिक्योर। ओके, उस केस में आप क्या कर सकते हो, टेलनेट को यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरी यहाँ पे मल्टीपल फायरवॉल लगा हुआ है, मल्टीपल चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं, मल्टीपल एंड पॉइंट्स लगे हुए हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम इंश्योरिंग, अगर मैं टेलनेट से मेरी डिवाइस को एक्सेस कर रहा हूँ, देयर इज नो इम्पैक्ट। ओके, सो आप यहाँ पे सेम चीजें मैंने लिखा है, टेलनेट को आप आइसोलेटेड एंड ट्रस्टेड नेटवर्क एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हो। लेट्स से ये जो एनवायरनमेंट है ट्रस्टेड नेटवर्क है या फिर आइसोलेटेड नेटवर्क है, इसके अंदर कोई भी वायरस इन्फेक्ट नहीं है, कोई भी हैकर नहीं है, सो वहां पे आप टेलनेट को यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी की अगर बात करूं, टेलनेट लैक ऑफ इंक्रिप्शन, जैसे मैंने कहा टेलनेट के अंदर कोई भी इंक्रिप्शन नहीं होता। एक्सपोजिंग सेंसिटिव डेटा, जो भी डेटा आपकी जाता है, लाइक सेंसिटिव डेटा इन द सेंस आपकी यूजर नेम पासवर्ड, आपकी आईपी एड्रेस, बहुत सारे सेंसिटिव डेटा होते हैं। ओके, वो सारे डाटा यहाँ पे क्या जाती है, एक्सपोज होके जाता है। दैट्स मीन्स ओपन टू ऑल होके जाता है, वो पब्लिकली विजिबल होके जाता है। ओके, डेटा टू इंक्रिप्शन ऑन पब्लिक और ट्रस्टेड नेटवर्क, जो आपके ट्रस्टेड नेटवर्क में आप टेलनेट चला रहे हो या फिर पब्लिक नेटवर्क में अपने टेलनेट चला रहे हो, सो ईच एंड एवरी डेटा आर इन प्लेन टेक्स्ट। ओके, लिमिटेड फीचर्स, टेलनेट के अंदर आपको क्या है, लिमिटेड फीचर्स है। लिमिटेड फीचर्स इन द सेंस टेलनेट डज नॉट सपोर्ट सिक्योर फाइल ट्रांसफर और टनलिंग, लिमिटिंग इट्स फंक्शनैलिटी। ओके, मॉडर्न नेटवर्क में क्या है, देयर इज कांसेप्ट ऑफ फाइल ट्रांसफर, देयर इज कांसेप्ट ऑफ टनलिंग। सो बहुत सारे कांसेप्ट को टेलनेट के अंदर बेसिकली सपोर्ट ही नहीं करता टेलनेट। ओके, टेलनेट बस एक ही फीचर्स है उसके अंदर कि मैं रिमोटली डिवाइस को एक्सेस करूंगा और अनसिक्योर वे में एक्सेस करूंगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी आप फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते, कोई भी आप टनलिंग नहीं कर सकते। दैट्स मींस देयर इज लिमिटेशन इसके अंदर। जैसे मैंने आपको एक मोबाइल, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आपके पास, आप मोबाइल खरीदने कहीं जा रहे हो, आपके पास एक मोबाइल है विच इज इन वन प्लस, वन प्लस की एक मोबाइल है, दूसरी अदर हैंड में आपके पास दूसरी एक मोबाइल है विच इज नथिंग बट वीवो मोबाइल। ओके,
बेसिकली मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है मोबाइल उपकर, फिर भी अगर वन प्लस की बात करूँ, इसके अंदर आपको 16 GB की RAM मिल रही है, या 4.2 या फिर 2.2 लेते हैं, 2.2 GHz की प्रोसेसर मिल रहा है, और 512 GB की आपको रोम मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हो स्टोरेज मिल रही है, और 100 MB की आपकी क्या 100 मेगापिक्सल की आपकी क्या मिल रही है, कैमरा मिल रहा है। सेम द अदर हैंड वीवो में आप जा रहे हो, यहाँ पे आपको 8 GB स्टोरेज मिल रही है, रैम मिल रही है, 1.5 GHz की प्रोसेसर मिल रही है, और लेट्स 1024 GB की आपको स्पेस मिल रही है, एंड 50 MB की स्टोरेज मिल रही है। और इसके अंदर ये तो है उनकी स्टैंडर्ड, और या फिर आप ऐसे कह सकते हो, लेट मी जस्ट टोल्ड यू, आप इसको ऐसे मान के चल सकते हो। ओके, इसके अंदर भी वीवो की मोबाइल के अंदर भी आपको 16 GB रैम मिल रहा है, 2.2 GHz की प्रोसेसर मिल रहा है, 512 GB आपको इसके अंदर भी रोम मिल रहा है, एंड 100 MB की 100 मेगापिक्सल की कैमरा इसके अंदर भी है। मतलब दोनों के फीचर्स सेम है, लेकिन वन प्लस वालों ने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अंदर ऐड ऑन किया है। लाइक इसके अंदर आप क्लाउड स्टोरेज 2 TB तक क्लाउड स्टोरेज कर सकते हो। ओके, 2 साल की गारंटी ये लोग दे रहे हैं। ओके, 2 साल की गारंटी दे रहे हैं। बहुत सारे फीचर्स वीवो के अंदर नहीं है, और दोनों की प्राइस सेम है, 20,000। उनका इसकी भी 20,000 है, और इसकी भी 20,000 ही है। सो नॉर्मली एक बंदे की अगर बात करूं, दे आर मूविंग एंड चूजिंग द वन प्लस, जस्ट बिकॉज इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स है, और इसके अंदर वो लिमिटेशन है, बहुत सारे फीचर्स नहीं है वीवो के अंदर। सो लाइक द सेम, अगर मैं टेलनेट और एसएसएच की कंपैरिजन करूं, टेलनेट के अंदर एक ही फीचर्स है, क्या है वो रिमोटली डिवाइस को एक्सेस कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सेम अदर हैंड में मेरे पास क्या है, एसएसएच है। एसएसएच की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, रिमोटली मैं डिवाइस को एक्सेस तो कर सकता हूँ, मीन वाइल मैं दूसरे काम भी कर सकता हूँ। लाइक मैं टनलिंग भी बना सकता हूँ, सिक्योर टनल भी बना सकता हूँ फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। दूसरा क्या है, मैं सिक्योरली फाइल को ट्रांसफर कर सकता हूँ फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट और क्लाइंट टू क्लाइंट। सो जिसके अंदर ज्यादा फीचर्स है, वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज दैट। ओके, then legacy use. Telnet remain in use in legacy system or control environment despite of upsurge. बेसिकली जैसे मैंने कहा, टेलनेट जो है इट इज ए लेगेसी यूज, मतलब आज के टाइम में टेलनेट यूज होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पुरानी जो लेगेसी सिस्टम इन द सेंस बहुत ही पुरानी सिस्टम है। ओके, उनमें बेसिकली डी जो एसएसएच है सपोर्ट नहीं करता। वो वाली जो लेगेसी है ना, बेसिकली पुरानी जमाने में क्या था, एसएसएच आया ही नहीं था। एसएसएच इज ए मॉडर्न सोल्यूशन। ओके, लेकिन पुराने जमाने में क्या था, मेरे पास टेलनेट था। सो इसीलिए हम क्या करते थे, टेलनेट को यूज करते हैं आज भी। ओके, अगर इसकी भी आपको एग्जांपल बताऊं, लेट्स से आपके पास एक पुरानी गाड़ी थी, लेट्स से यू आर हैविंग ए ओल्ड बाइक। आपके पास एक पुराना गाड़ी था, लेट्स से दिस इज ए बाइक। आपके पास एक बाइक वन था, इट इज ओल्ड बाइक। ओके, लेकिन इसके अंदर क्या था, 1 लीटर पेट्रोल में ये 200 किलोमीटर आपका जा रहा था। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, 1 लीटर पेट्रोल में ये 200 किलोमीटर तक जा रहा था। ओके, दूसरा आपने आपने एक बाइक खरीदा, लेट्स अ न्यू बाइक। इसके अंदर क्या कर रहे हो आप, 1 लीटर तेल में ये बस 2 किलोमीटर ही जा पा रहा है। सो ओके, सो दिस इज ए लीगेसी बाइक। इस बाइक को आप बेचोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये 1 लीटर में इट्स गोइंग लॉन्ग डिस्टेंस। लाइक ऐसे आप मान के चल सकते हो, आपके पास दो कंप्यूटर है, एक पुराना कंप्यूटर भी है, एक नया कंप्यूटर भी है। पुराना कंप्यूटर के अंदर आपने कुछ क्रिटिकल सर्विसेज चला रहे हो, लेट्स से दिस इज मंजित सिस्टम। ये मंजित की ओल्ड सिस्टम है। सेम अदर हैंड में मंजित की एक न्यू सिस्टम मंजित ने एक परचेस किया है। लेट्स से मंजित ने एक एप्पल की सिस्टम भी खरीदा है। ओके, एप्पल की मैकबुक भी मंजित ने खरीद रखा है। ओके, सो लेकिन मंजित ने जो सर्विसेस है, या फिर मंजित की जो क्रिटिकल सर्वर है, प्रोडक्शन नेटवर्क लेट से मंजित की है, और उस प्रोडक्शन नेटवर्क में सबसे जो क्रिटिकल सर्वर है, मंजित ने उसे इस ओल्ड वाले सर्वर में पहले से डाल रखा था। क्यों? क्योंकि उसके पास नया सर्वर था ही नहीं। और ये जो पुरानी सर्वर था, इट इज बेस्ड ऑन टेलनेट। ये टेलनेट ही सपोर्ट करता था, क्योंकि जब ये सिस्टम निकला था, जब ये सिस्टम मार्केट में आया था, तब एसएसएच नहीं आया था। सो टेलनेट की मदद से बेसिकली इसे आप रिमोटली एक्सेस करते थे। ओके, अभी जैसे मंजित ने नया हार्डवेयर तो खरीद लिया, लेकिन क्योंकि ये क्रिटिकल सर्वर ही है, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन मंजित इज नॉट शटिंग डाउन दिस पर्टिकुलर सर्वर। ओके, सो नॉर्मली इंडस्ट्री में यही होता है, हमारे पास एक पुराना सर्वर होता है व्हिच इज हाईली क्रिटिकल, उसको बेसिकली आप छेड़ नहीं सकते। दैट्स व्हाई वी आर रनिंग दैट पर्टिकुलर ओल्ड सर्वर, एंड द टेलनेट इज रिमेन वर्किंग। ओके, सो इट इज, उसको हम क्या कहते हैं, लीगेसी सिस्टम, और नथिंग बट लेगेसी सिस्टम। लेगेसी सिस्टम वो वाले सर्च सिस्टम्स होते हैं जो आपके बहुत ही पुराने होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम और सर्वर होते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते इन इजी हैंड। ओके, अदर वे में अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एसएसएच की बात करूं, एसएसएच हैव स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स। एसएसएच के अंदर जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, दिस इज योर सिक्योरिटी।
ओके। आपको अगर कोई एक रिमोट प्रोटोकॉल चाहिए जिसके मदद से आप एक लोकेशन में बैठे हुए हो लेकिन फिर भी आप दूसरी लोकेशन की सर्विसेज को एक्सेस करना चाह रहे हो या फिर डिवाइसेस को एक्सेस करना चाह रहे हो, और आपको सबसे बड़ा जो पॉइंट है दिस इज सिक्योरिटी, देन आप किसके तरफ जाओगे? आपको एसएसएच के तरफ जाना है। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेशन है, आपकी सिस्टम के अंदर देयर इज सम लिमिटेशन राम, देयर इज सम लिमिटेशन ऑफ सीपीयू, और आपको सिक्योरिटी कोई इतना ज्यादा मायने नहीं रख रहा। ओके, आपकी प्रोसेस फास्ट होना चाहिए लेकिन आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इन दैट हैंड यू कैन गो विथ टेलनेट। ओके, जब कभी आपको चाहिए कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मेरी काम फास्ट होना चाहिए, तो आप टेलनेट के साइड जाओगे। लेकिन अगर आपकी लेट्स से टाइम कितना भी लगे, मेरी हार्डवेयर रिसोर्सेस कितना भी लगे, लेकिन मुझे सिक्योरिटी चाहिए, देन यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर एसएसएच। ओके, एसएसएच में क्या होता है? इसमें हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, जो हमने कवर किया था ना टेलनेट में, लेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है। सेम द अदर हैंड में एसएसएच जो प्रोटोकॉल मेरे पास है, इसमें भी आपकी क्या होती है? हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है। व्हाई? जस्ट बिकॉज एसएसएच के अंदर आपकी क्या होती है? इंक्रिप्शन होती है, ऑथेंटिकेशन होती है, वहां पे प्रोफाइल्स क्रिएट होते हैं, वहां पे की कॉन्सेप्ट होती है। ओके, दैट्स व्हाई एसएसएच इज यूज much more resources in comparison to telnet। okay, इसमें अंदर क्या है? SSH provide encryption and authentication ensuring secure remote administration over the untrusted network। over the internet आप क्या कर सकते हो? SSH के मदद से सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हो। ओके, देन versatile functionality support secure file transfer and tunneling enhancing its versatility of network management task। versatility functionality in the sense एसएसएच की मदद से आप कुछ एडिशनल फीचर्स को भी एड ऑन कर सकते हो अपने नेटवर्क में, लाइक सिक्योर फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हो आप, या फिर सिक्योर टनल्स भी क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आप बाय हेल्प ऑफ दिस एसएसएच कर सकते हो। ओके, देन रिसोर्स यूज एंड की मैनेजमेंट। एसएसएच यूज स्लाइडली मोर रिसोर्सेज एंड टेलनेट। अगर टेलनेट मेरी 1% रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर रहा है, सेम अदर हैंड में एसएसएच मेरी 3 या 4% रिसोर्स यूटिलाइजेशन करेगा। व्हाई? बिकॉज टेलनेट के अंदर कोई भी एडिशनल फीचर्स नहीं था। अदर हैंड में एसएसएच के अंदर मेरे पास मल्टीपल एडिशनल फीचर्स है, लाइक यहाँ पे इंक्रिप्शन है, ऑथेंटिकेशन है। ओके, सो दैट्स द रीजन इट इज यूज रिक्वायर्ड स्लाइडली हायर रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू टेलनेट। ओके, सो अगर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट शो यू। अगर मैं आपको बताऊं ऑथेंटिकेशन क्या होता है, एनीवन नो व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? विस्मय, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? विस्मय, आर यू देयर? मंजीत, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? एम आई ऑडिबल गाइस? ऑथेंटिकेशन ये होता है कि जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा चाहिए ना, वो मेहनत करते हैं, जैसे कि फॉर्म मतलब होता है, आई थिंक वो भी होता है Can you just ऑथेंटिकेशन। elaborate? Can you just elaborate? अच्छा, एक्सप्लेन ऑथेंटिक करके बताओ इसमें, एक्सप्लेन। ओके, लेट मी जस्ट शो यू। अगर मैं आपको बताऊं बेसिकली जो आपकी ऑथेंटिकेशन क्या होता है, लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पे जैसे मेरे पास एक फॉर्म है, ये किस चीज की फॉर्म है? दिस इज नथिंग बट योर एलएमएस लॉगिन। ओके, इसके अंदर लेट से मैंने अपने यूजर आईडी डाला, इसमें मैंने पासवर्ड कुछ भी डाल रहा हूँ, यहाँ पे देखो मुझे लॉगिन फेल बताएगा। देखो यहाँ पे मुझे बता रहा है लॉगिन फेल्ड, इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड। ओके, सो बेसिकली इससे कैसे पता चला कि मैं इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूँ, मेरी यूजर आईडी या फिर पासवर्ड गलत में डाल रहा हूँ? हाउ ही कैन नो, ही और सी कैन नो दैट माय यूजर आईडी और पासवर्ड इज रॉन्ग? दैट्स व्हाई बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। इसके बैकएंड में होता क्या है? इसके बैकएंड में ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथेंटिकेशन इन द सेंस मैं यहाँ पे यूजर नेम डालूंगा, यहाँ पे अपनी पासवर्ड लेट से कुछ भी डाल दूंगा, वो बैकएंड में क्या करेगा? इस यूजर नेम और पासवर्ड को चेक करेगा। कहाँ से चेक करेगा? डेटाबेस से चेक करेगा। ओके, लेट मी जस्ट क्रिएट अ ब्लूप्रिंट। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है? लेट्स से दिस इज योर नेटवर्क लॉगिन पेज। ये हमारी एलएमएस की पोर्टल है। लेट्स से ये हमारी एलएमएस की पोर्टल है, और हमने एलएमएस की पोर्टल के साथ हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है? ऑथेंटिकेशन सर्वर लगा रखा है। ओके, ऑथेंटिकेशन सर्वर लगा रखा है। अभी सिंपली बैकएंड की जो स्क्रिप्ट चलती है कैसे चलती है? ओके, यहाँ पे जैसे मैंने अपनी यूजर आईडी लेट से मैंने डाल दिया लेट से रमेश, मैंने अपनी यूजर नेम डाल दिया रमेश, पासवर्ड डाल दिया 123,
और जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा या फिर एज यू कैन से लॉगिन के ऊपर आप एज द मोमेंट यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड क्या होंगे, इस सर्वर को जाके रीच हो जाएंगे। ओके, जो आपकी HTTP प्रोटोकॉल है ना, वो क्या करेगा, ये यूजर नेम और पासवर्ड को उठा के इस सर्वर को लेके दे देगा। या फिर जो भी आपके लेट्स हैं, हमारी केस में क्या है, यहाँ पे SSL हमने ले रखा है, सर्टिफिकेट ले रखा है, तो वो सर्टिफिकेट की मदद से मेरी यूजर आईडी और पासवर्ड किसके पास जाएंगे, मेरी ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाएंगे। फिर जाके वो चेक करेगा ये जो यूजर आईडी है और ये जो पासवर्ड है, लाइक रमेश और पासवर्ड है 123, क्या वो मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, आपको लॉग इन कर देगा। अगर नहीं कर रहे हैं देन आपको वो एरर शो करेगा, व्हिच इज इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। Got it? Authentication is nothing but verify your valid user। आप बेसिकली वेरीफाई करते हो कि जो भी यूजर मुझे एक्सेस कर रहा है सर्विसेज को, इज ही और सी इज वैलिड यूजर टू एक्सेस मी और नॉट। जैसे आप राउटर को एक्सेस कर रहे हो, आप सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, वो वहां पे आपको क्या पूछता है, यूजर नेम पासवर्ड, या फिर आपके केस में हो सकता है सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड पूछ रहा है। मतलब आपको पूछ रहा है कि मुझे पासवर्ड बताओ, मुझे खोलने से पहले मुझे पासवर्ड बताओ। जैसे घर आपकी, लेट्स से आपके रूम की मैं बात करूं, आपके घर लेट्स से आप कहीं बाहर जाते हो, आप घर क्या डाल देते हो, ताला डाल के जाते हो, राइट। जब कभी आप घर वापस आते हो, आपको सेम ताला से ही, आपको सेम की से ही इस ताला को खोलना होता है। क्यों? क्योंकि आपको ताला को जो है, यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को बताना है कि मैं अभी आ गया, ये तेरी की है, इस की से ही तू खोल सकता है। लाइक द सेम, अगर कोई दूसरा बंदा इसको आके कोई भी पासवर्ड, रैंडम पासवर्ड डालेगा, इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, जस्ट बिकॉज दिस लॉक इज नोन दैट व्हाट इज माई की। सो लाइक द सेम, अगर यहाँ पे आप पोर्टल पे जाओगे, जब जब कभी मैं यहाँ पे सही पासवर्ड डालूंगा वो एंड लॉग इन करूंगा, वो जाएगी मेरी सर्वर तक और सर्वर मुझे ऑथेंटिकेट करेगा, देन माई वेब पेज इज लॉग इन और माई LMS इज लॉग इन। सो जब कभी आपको कोई पूछे व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन इज नथिंग बट वेरीफाई the valid user, the process in which we are verify the valid user। बेसिकली आप क्या करते हो, वैलिड यूजर को वेरीफाई करते हो, दैट ही और सी इज वैलिड यूजर टू एक्सेस मी और नॉट। गॉट इट बिस्मय? Yes, yes. ओके, सो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। ओके, सो लेट्स मूविंग टुवर्ड्स एंड चेक व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन स्टेप ऑफ टेलनेट। अगर आपको कोई नेटवर्किंग डिवाइस है, लेट्स से वो राउटर है आपके पास, ओके, स्विच है, WLC है, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस आपके पास है, इट्स नॉट लाइक स्विच राउटर, या फिर कोई भी डिवाइस है, या फिर आपके पास जूनिपर की है, या फिर आपके पास कोई दूसरी वेंडर की है, हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर द टेलनेट। आप कॉन्फ़िगर कर सकते, कैसे कर सकते हो टेलनेट को। ओके, देखो टेलनेट सेटअप करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है, कॉन्फ़िगर द VTY लाइन बाय एंटरिंग लाइन VTY। पहला कमांड आपका ये रहेगा, लाइन VTY 0 to 4। लाइन VTY क्या होता है, लाइन VTY का मतलब होता है, VTY का मतलब होता है वर्चुअल टर्मिनल। ओके, और हमें पता है जो टेलनेट एक्सेस होता है, टेलनेट कैसे एक्सेस होता है, बाय द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल टर्मिनल, जो हमने पहले भी यहाँ पे पढ़ा था टेलनेट के सेक्शन में। ओके, लेट मी जस्ट शो यू, यहाँ पे देखो वर्डिंग था, यूज बाय वर्चुअल टर्मिनल। सो टेलनेट किसके मदद से बेसिकली एक्सेस होता है, बाय द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल टर्मिनल। ओके, और यहाँ पे 0 4 क्या है, 0 4 इज नथिंग बट द स्टार्टिंग यूजर इज 0 एंड द एंडिंग यूजर इज 4। दैट मीन 5 यूजर एट अ टाइम मुझे एक्सेस कर सकते हैं। जो आप यूजर नेम पासवर्ड दोगे, उस यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से एट अ टाइम सिमुस्टेनियसली सेम टाइम में, रियल टाइम में 5 इंजीनियर और या फिर 5 यूजर इस राउटर को या फिर इस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, 0 से इसकी काउंट शुरू होती है, 0 1 2 3 4। ओके, तो टोटल 5 यूजर इसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो लाइन क्या है, लाइन इज नथिंग बट योर फिक्स्ड कमांड। इसके बेसिकली कुछ नहीं है, एक फिक्स कमांड है। मतलब आप बता रहे हो मेरे डिवाइस के अंदर जो लाइन कार्ड है, उसके अंदर लाइन VTY, मतलब उस लाइन के अंदर जो वर्चुअल टर्मिनल है, या फिर आप कह सकते हो वर्चुअल लिंक्स है, वर्चुअल टर्मिनल को ऑन कर दो। 0 यूजर से लेकर 4 यूजर तक, मतलब 5 यूजर के लिए इस वर्चुअल टर्मिनल को आप ऑन कर दो। उसके बाद आप क्या करते हो, पहले तो आप क्या करते हो, एनेबल द VTY लाइन। पहला जो आपका टास्क रहता है, आप क्या करते हो, सिंपली यू आर लॉग इन टू योर स्विचेस और राउटर, फर्स्ट यू आर डूइंग लाइन VTY 0 to 4। ये 4 के बदले आप कुछ भी लिख सकते हो, 16 तक कुछ भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने लगभग 3 लिख दिया, तो टोटल यूजर कितना आएंगे, 0 1 2 3, 4 यूजर को मैं टोटल एक्सेस दे रहा हूँ एट ए टाइम। ओके, सो लाइन जैसे मैंने कहा कमांड फिक्स है, VTY का मतलब होता है वर्चुअल टर्मिनल, 0 होता है द स्टार्टिंग यूजर, 3 होता है द एंडिंग यूजर। ओके,
और टोटल यूजर कितने हैं 0 to 3 के बीच में 4 यूजर। ओके, गॉट इट मंजित? यस सर। ये सर ये एट ए टाइम यस चार हेलो ये एट यस ए टाइम यस 4 पर्सन मतलब उसे एक्सेस कर सकते हैं? यस राइट। सर मतलब ये 4 सर थोड़ा पर्सन मतलब डिफरेंट, ब्रीफली। हाँ डिफरेंट यस यूजर से लॉगिन करेंगे, सिमिलर यूजर, सेम यूजर सेम यूजर सेम आईडी पासवर्ड। यस, सेम यूजर इन द सेंस? सेम यूजर इन द सेंस। आगे देखो यहाँ पे, अभी जैसे हमने पहले कमांड लगा दिया, पहले कमांड में पहली जो कमांड हमारी थी दिस इज द फर्स्ट कमांड। इस कमांड में आप सिंपली क्या बता रहे हो कि मेरी जो डिवाइस है इसके अंदर जो वर्चुअल टर्मिनल है 0 से लेकर 3 तक ऑन कर दो। दैट्स मीन्स एट ए टाइम 4 बंदे इसको एक्सेस कर सकते हैं, कर पाए, इसको तुम्हें ऑन कर दो। इस कमांड में कोई किसी का डाउट है? नहीं नहीं। ओके, उसके बाद जो दूसरी कमांड आती है सेट द पासवर्ड, इसके अंदर आप क्या करते हो पासवर्ड सेट करते हो। उसके बाद आपको सिंपली लिखना है पासवर्ड 1234। आपकी ये स्टैंडर्ड पासवर्ड है। ये जो 4 यूजर रहेंगे, लेट्स से 4 यूजर का नाम है मेरा एडमिन। ओके, ये जो 4 यूजर रहेंगे इनके लिए सेम एक कॉमन पासवर्ड है विच इज 1234। ओके, 4 लोकेशन आपकी सेम लोकेशन में हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में हो सकता है। लाइक ये आपका एक डिवाइस है, जैसे दिस इज योर राउटर, लेट मी जस्ट इरेज फर्स्ट। ये आपकी डिवाइस है, दिस इज योर नेटवर्क डिवाइस। ओके, ये आपका एक स्विच है। ओके, इस स्विच के अंदर लेट्स से 4 यूजर इसे एक्सेस कर रहे हैं, दीज आर द 4 यूजर। ये 4 यूजर है, ये यूजर ए है, ये यूजर आपका बी है, ये यूजर आपका सी है, ये यूजर आपका डी है, 4 यूजर है। और आपने इस स्विच के अंदर जाकर क्या कमांड डाल रखा है, लाइन VTY 0 to 2 और पासवर्ड 123। और यूजर कौन है, लेट्स से यूजर नेम कैसे करते हैं वो आगे मैं बता रहा हूँ। यूजर लेट्स से फॉर एन एग्जांपल यूजर का नाम है मेरा एडमिन। ओके, अभी पहला यूजर जो है लेट्स से स्विच की आईपी है मेरी 1.1.1.1। इसको हालांकि हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ओके, 1.1.1 पहला यूजर लेट्स से ए यूजर है, ये जाएगा अपनी सीएमडी में जाएगा, या फिर जो भी इसके पास पुट्टी वगैरह या फिर कैसे करते हैं वो तो बात की बात है, वो मैं बताऊंगा आपको। ये गया पहले जो एक्सेस करेगा, इसने जाके क्या किया, सिंपली इस राउट स्विच को एक्सेस किया, इसने बेसिकली यूजर नेम डाल दिया एडमिन, पासवर्ड हो गया 123। सो पहली कनेक्शन ये एक बन गया। सो इसके पास एक टेबल भी मेंटेन होता है, उस टेबल में वो क्या करेगा, ये कनेक्शन 1 रेडी करेगा। ओके, कनेक्शन 0 बाय डिफॉल्ट कनेक्शन 0 होगा, नाम रहेगा उसका एडमिन, पासवर्ड रहेगा उसका 123 और आपकी सिस्टम की आईपी एड्रेस रहेगा लेट्स से 1234 आपकी सिस्टम की आईपी एड्रेस। ओके, ये एक यूजर हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 से लेकर 2 यूजर मतलब 0 1 2। ओके, 3 यूजर एट ए टाइम। फिर इसने बेसिकली कनेक्शन इनिशिएट किया, फिर एक एंट्री करेगा, एक नंबर एंट्री एगन एडमिन पासवर्ड 123 लेट से उसकी आईपी एड्रेस, ये दूसरा हो गया। तीसरा लेट से इसने इनिशिएट किया, कनेक्शन गया यहाँ पे, ये फिर मेंटेन करेगा 2 पासवर्ड यूजर नेम एडमिन पासवर्ड 123 लेट से उसकी आईपी एड्रेस, ऐसे मेंटेन करता है। मतलब यहाँ पे देखो एक स्विच को 3 इंजीनियर ने एक्सेस किया, लेट से ये जो यूजर है सी यूजर है, ये बस राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहा है। ओके, सो इसे राउटिंग कर पाएगा, वो आप परमिशन भी दे सकते हो ये क्या करेगा ये क्या करेगा। ओके, लेट से ये जो बी वाली इंजीनियर है, ये लेट से बस स्विच स्विच बनाएगा, मतलब इसका सिर्फ काम है VLAN बना पाएगा, VLAN को डिलीट कर पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। और ये जो एडमिन वाली ये जो ए वाली यूजर है, लेट से इसके पास फुल कंट्रोल है, ये चाहे तो डिवाइस को फॉर्मेट भी कर सकता है। सो ऐसे भी कर सकते हो आप। सो सिमुस्टेनियसली अगर आपको इसे आप इसे सही से देखोगे तो एट सेम टाइम इस स्विच के ऊपर 3 इंजीनियर अभी काम कर रहे हैं। गॉट इट इसमें यस। पता चल गया सिमुस्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एट अ सेम टाइम। ओके, अभी आप भी स्विच को लॉगिन कर रहे हो, मैं भी लॉगिन कर रहा हूँ, लेट्स से मंजित भी लॉगिन कर रहा है, रजत भी लॉगिन कर रहा है। ओके, विथ सेम कॉमन यूजर आईडी और पासवर्ड है। डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको लाइन VTY फिर अकॉर्डिंग टू यूजर नेम वो आगे देखेंगे हम। गॉट इट? सर ठीक है। ये जो 0 to है उसके अंदर मतलब गैप है या मतलब कंटिन्यूअसली लगेगा? 0 स्पेस 2, लाइन बिटवीन 0 to। 0 स्पेस 2। ओके। ओके। ओके ठीक है, यस थैंक यस यू। रजत मंजित। मन, मन, हाँ सर, सर क्या बोलते, जैसे अभी आप स्क्रीन पे पढ़ा रहे हो तो हम सारे आपको देख पा रहे हैं, तो ये इन यूजर्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि जैसे ए कुछ टाइप कर रहा है तो बी और सी उसको देख पा रहा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नथिंग लाइक दैट। सेपरेट सेशन होता है ना सबका? हाँ बिल्कुल। ठीक ठीक है सर। गॉट इट।
ओके, उसके बाद आपने क्या पहली कमांड हमने क्या लगा दिया, लाइन v2i 04। उसके बाद हमने पासवर्ड कमांड पहले लिखोगे पासवर्ड, पासवर्ड जो है ये कमांड है। ओके, पासवर्ड के बाद आपने अपनी पासवर्ड सेट करोगे, दिस इज द कमांड। ओके, और इसको ये मत मानना कि दिस इज द पासवर्ड, पासवर्ड मुझे पूछ रहा था, मैंने पासवर्ड ही सेट कर दिया। सो पासवर्ड, दिस इज द कमांड। उसके बाद आपने अपनी पासवर्ड देना है। ओके, उसके बाद एनेबल ऑथेंटिकेशन। उसके बाद आपकी जो थर्ड कमांड रहेगी, दिस इज लॉगिन। एक्टिवेट लॉगिन ऑथेंटिकेशन विद द लॉगिन कमांड टू रिक्वायर्ड पासवर्ड वैलिडेशन। अगर आपने लेट से फॉर एन एग्जांपल, पहला कमांड मैंने क्या दिया, लाइन VTY 0 से लेके 4। ओके, दूसरा कमांड मैंने दिया पासवर्ड। ये हालांकि मैं आपको लैब करके भी अच्छे से दिखा दूंगा, जो भी डाउट होगा उसमें हम सॉल्व कर लेंगे। पासवर्ड लेट से पासवर्ड मैंने दिया 1 2 3 4। आपने सिर्फ इतना कमांड चला दिया और कुछ आपने नहीं चलाया, सो इट इज टोटली इनकम्प्लीट। ये जो टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन आपने किया, अब जब कभी रिमोट पे एक्सेस करोगे आपको वो कुछ नहीं पूछेगा। ओके, और बहुत सारे केसेस में क्या करेगा, वो आपके रिमोट कनेक्शन को फेल कर देगा, बोल देगा ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ओके, सो इसीलिए लास्ट में आपको एक कमांड भी डालना होता है विच इज लॉगिन। जैसे ही आपने लास्ट कमांड डालोगे ना, दैट्स मीन्स अभी टेलनेट की जो लाइन V2i है, इसको आप बोल रहे हो जब कभी लाइन V2i 0 से लेके 4 से कोई भी कनेक्शन तेरे और आ रहा है, तो उसे क्या कर, उसे पासवर्ड पूछ। सो वो आपको क्या पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। ओके, सो थर्ड कमांड इज लॉगिन। उसके बाद इंश्योर नेटवर्क रीचेबिलिटी। कभी भी आप टेलनेट SSH कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आप नेटवर्क रीचेबिलिटी पहले चेक करोगे। पहले आप पिंग लगा के देखोगे कि मैं वो डिवाइस को एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। अगर कर पा रहा हूँ देन आप SSH करोगे या फिर टेलनेट करोगे। ओके, डायरेक्ट जाके टेलनेट करोगे, डायरेक्ट जाके SSH करोगे, देन दिट इज नॉट द राइट वे। मेक श्योर डिवाइस हैज एन IP एड्रेस एंड रीचेबल फ्रॉम योर नेटवर्क डिवाइस। ओके, कभी भी आप नेटवर्क डिवाइस एक्सेस कर रहे हो, कभी भी आप नेटवर्क डिवाइस को रिमोट पे ले रहे हो, सो मेक श्योर फर्स्ट द रीचेबिलिटी वाज हैपन। आपकी रीचेबिलिटी जो है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए। ओके, हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड टू टेलनेट सेटअप, हालांकि ये लैब हम करके देखेंगे बहुत टेलनेट एंड SSH। मंजित, हैविंग एनी क्वेरी? हाँ सर, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया था ना कि आपने 3 यूजर के लिए उसको अलाउ किया था, जो आपने हम्म ड्राइंग बनाई थी। तो हम्म। अगर उसमें कोई चौथा यूजर आता है, उसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करता है, तो क्या पहले वाले लॉग आउट हो जाएंगे नहीं, वो या चौथा जो यूजर आएगा वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। वो लॉगिन नहीं कर पाएगा? और एक वो चीज जो सर आपने चौथा इसमें यूजर बोली। होगा, जो चौथा यूजर होगा हम्म, उसको बेसिकली एरर हम्म, दे देगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ठीक है। और जैसे आपने इसमें बोला कि पहला यूजर उसको जैसे एडमिन फुल कंट्रोल रहेगा, दूसरे वाले के पास यस यस। वीलैन का रहेगा। हम्म। तो एक ही यूजर पे इतनी सारी परमिशन हम किसको कैसे देनी होगी, वो कैसे होगा? वो देखेंगे आगे सेम ही जब हम यूजर पे ना? कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना वो देखेंगे, रियल टाइम में मैं आपको वो दिखाऊंगा। गॉट इट? ठीक है सर। ओके, भीष्म, हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड टू टेलनेट? नो नो, ओके, क्लियर। उसके बाद आती है हमारी SSH की कॉन्फ़िगरेशन। एंड बिलीव मी गाइस, SSH की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इतनी ज़्यादा टफ तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे इंजीनियर क्या करते हैं, मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, जो बिगिनर लेवल की इंजीनियर्स होते हैं जो SSH कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-4 स्टेप ज़्यादा रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर मिसिंग दैट पर्टिकुलर स्टेप। सो दैट व्हाई द SSH कनेक्शन इज फुली नॉट एस्टेब्लिश। नॉर्मली सिनेरियो में क्या होता है, जब आपने SSH कॉन्फ़िगर कर तो देते हो, जब आप एक्सेस करते हो वहां पे आपको RTO मैसेज दे देता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट दे देता है, सेशन टाइम आउट एरर दे देता है, और वहां पे कभी कभी आपको एरर भी दे देता है, फिंगरप्रिंट इज नॉट मैच। ये वाली जो मैसेज है कॉमन मैसेज, फिंगरप्रिंट इज नॉट मैच। ओके, सो ये 3-4 टाइप की बेसिकली एरर मैसेज आपको वो शो करता है आफ्टर द SSH कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने सही से SSH को कॉन्फ़िगर नहीं किया। ओके, SSH कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले क्या होती है, इनिशियल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। आपकी इनिशियल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। देखो, हमने जब टेलनेट पढ़ा था, टेलनेट के अंदर बस जाओ VTY को ऑन कर दो, दैट्स इट। कोई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, चाहे आपकी स्विच के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन हो या ना हो, टेलनेट वो सब नहीं देखता। टेलनेट सीधा इस लाइन VTY को कनेक्ट करता है। लेकिन SSH कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आपके डिवाइस के अंदर बेसिक कम्युनिकेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। लाइक आपकी डिवाइस का एक होस्ट नेम होना चाहिए, मतलब डिवाइस का एक नाम होना चाहिए। लेकिन टेलनेट में चाहे नाम हो या डिफॉल्ट नाम हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन SSH के अंदर आपके डिवाइस के अंदर एक होस्ट नेम होना चाहिए। ओके, सो SSH कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारी जो फर्स्ट कमांड है, दिस इज होस्ट नेम। आप अपने डिवाइस को एक होस्ट नेम दोगे। लेट्स से मैंने होस्ट नेम दे दिया, लेट्स से DC राउटर 1। ओके, अगर आप होस्ट नेम नहीं दोगे देन SSH प्रॉपरली कन्फिगर नहीं होगा, आपको एरर थ्रो करेगा। ओके,
तो पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा है, सेट द डिवाइस होस्ट नेम एंड डोमेन नेम टू प्रिपेयर द एसएसआई सेटअप ऑन सिस्को डिवाइस। ओके, सिस्को डिवाइस की अगर बात करूं, पहली कमांड रहेगी दिस इज आईपी, दिस इज होस्ट नेम। ओके, दूसरा रहेगा डोमेन नेम। डोमेन नेम कैसे देते हैं, दिस इज आईपी डोमेन नेम। डोमेन नेम आपकी जो भी डोमेन है, लेट्स से हमारा डोमेन यहाँ पे है networker.com। ओके, और ये networker.com ऐसा नहीं कि आपको इस खरीदना पड़ेगा, कोई भी लोकल नेम आप दे सकते हो। ओके, सो पहला काम क्या है, होस्ट नेम सेट करो। दूसरा नाम क्या है, डोमेन नेम सेट करो। ओके, तीसरा काम क्या है, आरएसएच की एक्सपोर्ट, जो मैंने अभी जस्ट आपको थ्योरी में पढ़ाया था। आरएसएच क्या होता है, एक एल्गोरिदम होता है जिसके मदद से आप पूरी की पूरी इंक्रिप्शन को अचीव करते हो। ओके, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आरएसएच की को एक्सपोर्ट करना होता है, और एक्सपोर्ट की कमांड क्या होती है, क्रिप्टो जनरेट क्रिप्टो की। ओके, जनरेट क्रिप्टो की, आरएसए। ओके, जैसे ही आप एक कमांड को एंटर करोगे ना, यहाँ पे वो आपको पूछेगा कि कितने बीट की आपको की चाहिए। ओके, और मिनिमम आप कितना ले सकते हो, 1024 से लेकर 2048 तक लेके जा सकते हो की साइज को। मतलब जो आपकी इनक्रिप्ट होगा उस की का साइज क्या है, जैसे प्राइवेट की पब्लिक की का साइज क्या रखोगे वो आपको पूछेगा। अगर आपने कुछ नहीं दिया, एंटर दबा दिया, तो बाय डिफॉल्ट 1024 की वो जनरेट कर देगा। लेकिन अगर आपने दिया देन मैनुअली वो क्रिएट करेगा। ओके, उसके बाद यूजर ऑथेंटिकेशन सेटअप। उसके बाद आप क्या करोगे, यूजर नेम बनाओगे। यूजर नेम, लेट्स से यूजर नेम है XYZ, पासवर्ड सेट करोगे एंड पासवर्ड वहां पे डालोगे। ओके, देन उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट स्टेप में आप जाके क्या करोगे, एसएसएच को एनेबल करोगे। अगेन एसएसएच को एनेबल करने के लिए सेम प्रोसेस है लाइक टेलनेट के लिए, लाइन VTY024 ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच। देखो ये जो सिंगल दो कमांड के मदद से आप टेलनेट को, एसएसएच को मतलब ऑन कर सकते हो, और यहाँ पे लिखोगे आप लॉगिन। ओके, इन तीन कमांड के मदद से आप क्या कर सकते हो, एसएसएच को ऑन कर सकते हो लाइक टेलनेट। टेलनेट में भी सेम कमांड था, बस वहां पे क्या था, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच आपको दिख रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। टेलनेट में भी सेम तीन कमांड है, यहाँ पे भी सेम तीन कमांड है। ओके, लेकिन ये बस है एसएसएच को ऑन करने के लिए, और ये जो मैंने तीन चार कमांड बताया, दीज आर कमांड टू क्रिएट द इंक्रिप्शन। ये सारे कमांड की मदद से आप क्या करते हो, टेलनेट को बोलते हो कि इस की में इंक्रिप्ट करना है, इस राउटर के ऊपर इंक्रिप्ट करना है, इस डोमेन में इंक्रिप्ट करना है। बेसिकली ये आपकी इंक्रिप्शन प्रोफाइल होती है। ओके, जो आपकी टेलनेट होता है, टेलनेट में एक ही प्रोफाइल होता है, व्हिच इज प्रोफाइल 1। प्रोफाइल 1 व्हिच इज नथिंग बट योर कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल, और ये आप कह सकते हो एनेबल प्रोफाइल। ओके, इसके अंदर एक ही प्रोफाइल होता है व्हिच इज योर एनेबल प्रोफाइल। एसएसएच के अंदर दो प्रोफाइल होते हैं आपकी, एक होता है प्रोफाइल 1, दूसरा होता है प्रोफाइल 2। प्रोफाइल 1 में आप क्या करते हो, प्रोफाइल 1 में आप इनक्रिप्शन प्रोफाइल को एनेबल करते हो। ओके, इनक्रिप्शन प्रोफाइल को आप ऑन करते हो किसमें, प्रोफाइल 1 में। प्रोफाइल 2 में आप एसएसएच को ऑन करते हो, और या फिर आप ये कह सकते हो एसएसएच को एनेबल करते हो। सो बहुत सारे इंजीनियर एसएसएच प्रोफाइल 2 तो इनिशिएट कर देते हैं, लाइक लाइन VTY024 देन ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच, वो तो कर देते हैं। लेकिन ये जो प्रोफाइल 1 है, इसमें बेसिकली उनकी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो कमांड भूल जाते हैं, या फिर जो की इंक्रिप्शन है वो की गलत जनरेट कर देते हैं, या फिर डोमेन नेम गलत दे देते हैं, या फिर होस्ट नेम छोड़ ही देते हैं, कुछ अलग दे देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग इशू। सो आपको हमेशा याद रखना है, आपको ऐसे बेसिकली इस चार चार स्टेप को या फिर पांच स्टेप को फॉलो करके आपको एसएसएच की इंक्रिप्शन प्रोफाइल को अचीव करनी है, व्हिच इज प्रोफाइल 1। और इसके पूरी की पूरी लैब को हम फर्दर सेशन में आपको मल्टीपल एनवायरनमेंट में ऊपर में करके दिखाऊंगा, और रियल स्विचेस को भी एक्सेस करके दिखाऊंगा, देन हाउ वी कैन अचीव दैट। ओके, देन यूज केसेस एंड बेस्ट केसेस की अगर बात करूं, टेलनेट यूज केसेस कहाँ है, टेलनेट इज मेनली यूज इन लेगेसी सिस्टम आइसोलेटेड लैब एनवायरनमेंट वेयर सिक्योरिटी रिस्क आर मिनिमल। टेलनेट बेसिकली कहाँ पे आप यूज करोगे, जो आपकी लेगेसी सर्वर है जिसमें एसएसएच कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा है, पर एसएसएच सपोर्टेड नहीं है, उसमें आप टेलनेट को यूज कर सकते हो। और टेलनेट आप वहां पे भी यूज कर सकते हो जहां पे आपकी सिक्योर एनवायरनमेंट है, आपकी कंपनी के अंदर मल्टीपल चेक पॉइंट्स हैं, मल्टीपल फायरवॉल्स हैं, मतलब सिक्योरिटी का इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है ओवर द रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल्स, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, टेलनेट का यूज कर सकते हो। एसएसएच एप्लीकेशंस की अगर बात करूं, एसएसएच इज वाइडली अप्लाइड फॉर सिक्योर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल ट्रांसफर एंड टनलिंग। एसएसएच को हाईली यूज किया जाता है मॉडर्न इंजीनियरिंग या फिर मॉडर्न नेटवर्किंग में, किस चीज के लिए, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी सर्वर को आप रिमोट पे लॉगिन करोगे, नेटवर्क डिवाइस को मैनेज करोगे,
फाइल ट्रांसफर करोगे, टनलिंग करोगे, तो वहां पे बेसिकली एसएसएच को आप यूज करते हो हाईली। सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिस, जो बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा क्या कहता है, डिसेबलिंग टेलनेट इन प्रोडक्शन। जो आपके प्रोडक्शन नेटवर्क होती है लाइक बैंकिंग एनवायरनमेंट, ओके, जहाँ पे डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक प्रोडक्शन नेटवर्क लाइक होंडा, हीरो, टीवीएस, ये जो सारे प्रोडक्शन, सुजुकी मोटर्स, ये जो सारे टेक महिंद्रा, ये जो सारे प्रोडक्शन बेस्ड नेटवर्क है, इनमें बेसिकली वो क्या करते हैं, टेलनेट को बंद कर देते हैं प्रोडक्शन नेटवर्क में, टेलनेट को ऑन ही नहीं रखते। ओके, इन्फोर्सिंग स्ट्रॉन्ग की बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड अपलोड एसएसएच सेटिंग है, तो वहां पे क्या ऑन करते हैं, एसएसएच को ऑन करते हैं, और टेलनेट को बेसिकली वो लोग बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे टेलनेट रहेगा तो कोई ना कोई इंजीनियर टेलनेट ऑन कर देगा, अगर टेलनेट ऑन कर देगा तो उनके डेटा लॉस होने के चांसेस रहती है। दैट्स व्हाई दे गाइस आर disabling the telnet and enforcing to use the SSH protocol. Okay, कंक्लूजन की अगर बात करूं, डिफरेंट बिटवीन टेलनेट एंड एसएसएच की अगर बात करूं, टेलनेट इज ओल्डर प्रोटोकॉल, लैक सिक्योरिटी, व्हाइल सिक्योर एसएसएच इज ऑफर इंक्रिप्शन, सिक्योर और रिमोट एक्सेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। टेलनेट बहुत ही पुराना प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी नहीं है उसके अंदर। ओके, लेकिन सेम इन अदर हैंड में क्या है, मेरे पास एसएसएच है व्हिच इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऑफर इंक्रिप्शन, सिक्योर रिमोट एक्सेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। सिक्योर रिकमेंडेशन, सिक्योरिटी रिकमेंडेशन की अगर बात करूं, अवॉइड यूजिंग टेलनेट इन प्रोडक्शन। जो एज ए नेटवर्क गाय, एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जो मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा, कभी भी कोई भी एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो, लेट्स से दिट इज ए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट और बैकिंग सेक्टर एनवायरनमेंट, और आप कह सकते हो आपकी जो एनवायरनमेंट में जिसमें आप जॉब आपकी लगी हुई है, वो एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत ही डेटा के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस रख रहा है वो एनवायरनमेंट, तो वहां पे क्या करो, आप टेलनेट को बंद ही कर दो बिल्कुल। ओके, इनिशिएट प्रायोरिटाइज एसएसएच विथ स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड फॉर सेट फॉर रिमोट एक्सेस। ओके, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट, फॉलो बेस्ट प्रैक्टिस सच एज रेगुलर अपडेट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग। सो हमेशा, चाहे वो एसएसएच हो चाहे वो टेलनेट हो, नॉर्मली हम टेलनेट की बात ही नहीं करते, एसएसएच अगर आप यूज कर रहे हो, सो डे टू डे, हर 6 महीने में, 7 महीने, या फिर हर 1 साल में उसके की को अपडेट करो, की के साइज को अपडेट करो, और उसे मेंटेन करो, कोई वायोलेशन तो नहीं हो रहा, वो बेसिकली चेक करते रहो। सो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, हैविंग एनी क्वेरी गाइस टिल नाउ? सर टेलनेट में जब हमने क्रिएट किया था ना टेलनेट, तो हमने 3 कमांड से क्रिएट कर दिया था, लेकिन उसमें हमने यूजर नेम तो क्रिएट ही नहीं किया था। तो बाय डिफॉल्ट यस, क्या यूजर नेम वो लेगा या किस तरीके से? बाय डिफॉल्ट यूजर नेम लेगा वो सिस्को, अगर आप क्रिएट नहीं करते। ओके, और ये जो फॉर यूजर सिस्को नेम डिवाइस। बाय, यस, सिस्को बाय डिफॉल्ट सिस्को लेगा, अगर आप पासवर्ड भी नहीं दे रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट वो पासवर्ड भी लेगा व्हिच इज सिस्को। ओके, ओके, दैट्स व्हाई वी आर ठीक। नॉट कवरिंग। लेकिन एसएसएच के अंदर ऐसा नहीं कि आप सिस्को सिस्को दे दोगे, बाय डिफॉल्ट वो लेगा ही नहीं, वो आपको बोलेगा आप पहले यूजर बनाओ। ओके, हम्म। दैट्स व्हाई दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट और मच मोर सिक्योर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पब्लिक की था, वहां पे क्या था, सिमेट्री की था, सेम की से खुल जाता था, लेकिन यहाँ पे आपकी एसिमेट्रिक की एक्सचेंज होता है, पब्लिक की प्राइवेट की कॉन्सेप्ट होती है, डाटा इनक्रिप्ट होती है, और यहाँ पे वो कुछ आपके डिवाइस को भी चेक करता है, लाइक डिवाइस की होस्ट नेम है या नहीं है, इसके अंदर डोमेन है या नहीं है, यूजर बना है या नहीं बना है, बहुत सारी चीजों के ऊपर भी वो ध्यान रखता है। ओके मंजित? ठीक ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है। So in our upcoming session, our first goal is to achieve talent और SSH in real environment। हम प्रोडक्शन अपने लैब को एक्सेस करेंगे, और एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की स्विच को भी मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा कि टेलनेट लॉगिन करने से क्या कैसे दिखता है, बेसिकली कैसे लॉगिन करते हो, कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, और सेम इन द अदर हैंड SSH भी मैं आपको दिखाऊंगा। गॉट इट बिस्मय? हैविंग एनी क्वेरी? नो नो। मंजीत हैविंग एनी क्वेरी? नो नो सर। ओके,